Yo, Big Boss say 10. You know what it is, let's go. Go time, homie, gon' hit record. Boss vibes and I don't know what you thought. I buy it all, so I don't know what you bought. Pass the ball, homie, yeah, FPP up on the court. Boss vibes, yeah, I continue bossing. Big chain, homie, I continue flossing. Do it real big and I do it very often. Ain't no competition, nah, homie, I'm too awesome. Boss vibes, yeah, I continue bossing. Big chain, homie, I continue flossing. Do it real big and I do it very often. Ain't no competition, nah, homie, I'm too awesome. Hello, everybody. Welcome back to Kirti Says, and I'm here with the review of Big Boss Season 16 Weekend Ka Vaar edition. कैसे हैं आप सब? यहाँ रिव्यू अभी शुरू हुआ है. कंप्लेंट्स यहाँ रोना धोना पहले से शुरू हो गया है by CNP, TFR. ओडी ने जो कहा उसने कहा. I can't control him. That's up to him and his thinking and his विचार. ठीक है? You have a problem with him, you take it up with him, message him, call him, जो करना है करो, मेरा सर मत खाओ. ठीक है? Anyways, guys, I have to say a big kudos to Salman Khan. हम अगर यहाँ सलमान खान को क्या कहते हैं कभी कभार क्रिटिसाइज करते हैं कि वीकेंड का वार बोरिंग था, आपने मुद्दे नहीं छेड़े, आपने कुछ एनर्जी नहीं दिखाई. I just have to give a really big shout out to Salman Khan आज because आज बहुत टफ दिन था सलमान के लिए. इतना कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, उनका फ्रेंड का गुजरना, मतलब the murder basically that happened. उसके बाद उनके खुद के लाइफ पे जो threats हैं, उसके बाद वो सब एक साइड पे रखना और आके अपना काम करना. I just have to say, Salman, more strength to you. And it was really good to see you. And form में भी थे, अच्छा सा उन्होंने entertain भी किया. मैं तो हंसी रही थी पूरे weekend के वार पे. And I just think ये अच्छा था उनके लिए भी. It has to have been really tough, guys. Like बहुत tough था उनके लिए, किसी के लिए भी होगा. And I just have to say, Salman was right. काम है, commitment है, तो उन्होंने कर ली. And बहुत अच्छा से उसने ये पूरा handle किया है, मुझे लगता है. Okay, सनी महाजन कह रहे हैं just watch the promo how Avinash is charging on Karan abusing pathetic. Yeah, I know. लेकिन उसके ऊपर हम कल बात करेंगे क्योंकि वो कल में दिखाई देगा. Thank you, Neha, so much. Hello, Abhishek. How are you doing? Hi, Helga. Yes, episode got done early. I'm very glad. खींचा नहीं, इतना crisp रहना चाहिए. Like खींचो मत. There's no need for that. Hi, Mariam. How is it doing? How are you doing? Thank you so much, Rayan. Hi, Asif. Show us your mehndi like those brides. Please post for us. Oh, like those brides. वो क्या करते थे? Oh नहीं, कैसे करते हैं? ऐसे. क्या करते हैं वो? ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे ऐसे. मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ इधर ही लगाई है. ठीक है, बिकॉज कल है करवा चौथ. कल क्या पता मैं आऊं ना आऊं, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है. लेकिन एश बिजा मेरी सब्स्टिट्यूशन के लिए पहुंच जाएंगे कल मैं देखूंगी. मूड किया तो आऊंगी, नहीं किया तो नहीं आऊंगी. बिना खाए पिए एंड देन यहाँ पे बात करना, जितना बात करूंगी उतना ही प्यास लगेगी. सो आई डोंट नो, आई विल सी. इफ आई वांट टू कम आई विल कम. If not, you can do without me for a day. Hi, Kanchan. I love your Karva Chauth Mehndi. Thank you so much. Kritika. Yes, Kirti. I also felt that he was so low and then he had to keep up with the stupid drama. Kritika, yes, low the in terms of obviously, like, जैसे उन्होंने कहा, life में इतनी problems है ना, जो आप इस घर में deal कर रहे हो, like, it's very minuscule in terms of कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है. So I understand that, especially unke saath, he was very close to, all the situation that's happening. Abhi bhi ho rahi hai situation. So I think he had a good perspective. Lekin that being said, मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छे से handle किया है. वो like क्या कहते हैं, it wasn't degrading, गुस्सेल नहीं थे वो, अच्छा attitude था उनका. Like I like sarcasm, तो वो sarcasm में वो जो चल रहा था, that was really good. And I just really think that's how it is. Hi Raju, how's it going? क्या कहते हैं, yes, but the whole episode on Arfeen profession was not needed. I didn't have a problem with it.
डे वन से ये माइंड कोच माइंड कोच माइंड कोच माइंड कोच दिमाग खराब कर दिया इस माइंड कोच ने. एवरी डे ही टॉक्स अबाउट इट. देन व्हाई नॉट if he can talk about it, it's a subject that can be used in the episode. Also, ये जैसे सलमान ने कहा कि अरफीन आपने तो टिप्पणियां बहुत दी हैं for all these people, खासकर करण को लेके. Did you forget that? उनका ट्रिगर क्या है, ये कितने अग्रेसिव है नहीं है. अग्रेशन तो आप लोग दिखा रहे हैं. Look at your wife slapping herself. Trigger, you are the one triggered. तो यहाँ पे उन्होंने ये सब बोला है, तब सलमान ने आके ये बोला है. एंड आई स्टिल विल से अविनाश मुझे रद्दी भर पसंद नहीं है, लेकिन उसने प्रोफेशन के ऊपर कुछ नहीं कहा था. अविनाश ने यही कहा था कि माइंड कोच को भी कोचिंग की जरूरत है, या माइंड कोच खुद ट्रिगर हो गया. जो भी उसने कहा था, दैट्स ऑल ही सेड. He didn't invoke all the mind coaches in the world. He didn't say anything like that. ये खुद अपने ऊपर ये सब लेके आए थे. That's the thing. And ये जो सारा कह रही थी, दूसरे एक्टर्स ने तो भी कहा था ना, क्या कहते हैं, चाहत के ऊपर कि ये ड्रामा करती है, फेक है, फलाना है, ढिमकाना है. हाँ, लेकिन यहाँ पे दे डिडंट से कि पूरे एक्ट्रेस को इन्होंने इंसल्ट कर दिया. सारा एंड अरफीन आर सेइंग कि उसने पूरा माइंड कोचिंग के फील्ड को इसने इंसल्ट किया. यू सी द डिफरेंस देयर. दैट्स the difference. Okay, I know y'all don't like Arfeen, but I feel like he's not that important player. Spending so much energy for him was me. I think he is. आई थिंक अभी तो वो टाइम ऑफ गॉड है, टाइम ऑफ गॉड, गॉड ऑफ टाइम है, तो इम्पोर्टेंस तो उसको मिली हुई है. इम्पोर्टेंस वो खुद भी ले रहा है, तो अभी तक तो वो है. जब तक ये लल्लू पल्लू निकल जाएंगे तब तक के लिए तो अरफीन इम्पोर्टेंट है. बाय लल्लू पल्लू आई मीन हेमा एंड बग्गा एंड मुस्कान, इवन चुम फॉर दैट मैटर. और कोई है लल्लू पल्लू? I don't know anyone else off the top of my head. Lekin I feel like Arfeen is kind of there because he inserts himself. And ये जो drama हुआ था अविनाश के साथ, उसमें Arfeen का equal हिस्सा था. जो eruption हुई है, all of that started from Arfeen. मतलब उनकी तू मैं जो हुई थी. So I think it's okay to address him. And ये जो इतना लंबा हुआ है, it's because Arfeen खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि मैं करता क्या हूं, कैसे मेरी प्रोसेस सिस्टम, जो वो बार बार कह रहे थे. एल्विश 2 सीजन्स पहले आया था और उसका सिस्टम अभी तक यहाँ चल रहा है. as soon as I heard system, I was like, oh my god. Oh my god. So that's how I felt on that. I think अगर अरफीन succinctly अपना पॉइंट रख पाते तो क्या ही बात थी. He wasn't able to do that घूम घूम, ऐसे it was like a भूल भुलैया हो रही थी कोई. He wasn't making any sense. तो जो बंदा खुद सेंस में नहीं बात कर रहा, how does he expect other people to understand what the hell he does जब वो खुद explain नहीं कर पा रहा. And जब ये point करण ने उठाया कि वो वही कह रहे थे कि you know when you talk about your profession it is promoting it and you are agreeing with it now, लेकिन जब सलमान कह रहे थे आप offend हो गए थे, he goes नहीं, I'm happy people are very confused, you're thinking about it. तो you know he is promoting his career here. And यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सलमान का दूसरा पॉइंट भी मुझे अच्छा लगा कि देखो, अगर आप एज माइंड कोचेस यहाँ आए हैं एंड अपना प्रोफेशन लोगों को बताना चाहते हैं एंड बाहर भी माइंड कोच बनना चाहते हैं, देन मे बी शायद थोड़ा सा you should figure out what you're saying, how you're saying, what you're doing, why you're doing, क्योंकि आपको यहाँ से फील्ड नहीं चेंज करनी, आपको यही कैरी ऑन करना है ना. So on one level I agree with that, but on the second level क्योंकि अब अरफीन खान के पीछे asterisk लग जाएगा बिग बॉस कंटेस्टेंट का, I think people might come to him anyways, क्योंकि फिर वो एक सेलिब्रिटी, सूडो सेलिब्रिटी बन जाएंगे एंड लोगों को भी होगा मैं एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट से मिलके आई हूँ या आया हूँ. सो आई थिंक इट कैन वर्क क्या कहते हैं बोथ वेज. नहीं, मैंने नहीं बंद करनी. तू जो अपना बकवास सा चेहरा यहाँ लेके आया है, तू दफा हो जा. थैंक यू सो मच. थैंक यू रितु, आई अप्रिशिएट इट. अरफीन बहुत फेंकता है, मुझे तो उसका समझ ही नहीं आ रहा था. ही वाजंट एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ एंड देन सारा की जो शक्ल बनी थी towards the end of the episode, it was क्या कहते हैं sulking, like a sulking बच्चा. That's how she was looking. हमें ही sarcasm में बात कर रहे हो, वो जैसे बात करता है क्यों नहीं आप टैकल करते उसको, क्योंकि उनको नहीं करना अभी,
क्योंकि वो चाहते हैं अविनाश इसी टेंजेंट पे रहे। अविनाश को जितना उन्होंने इनडायरेक्टली सुनाना था, सबको सुनाना था, उन्होंने सुनाया। दे सेड कि एक्सक्यूज मी, इसके खिलाफ इतना बड़ा एलिगेशन आपने लगाया है, ही विल फील अ सर्टेन वे, उसको पावर मिली है तो ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा था कि आई एम नॉट सेइंग ही इज राइट एंड ही डज नीड सम हेल्प, ओके, तो ये भी उन्होंने साथ साथ में कहा था। तो उसको सुनाया भी है थोड़ा सा, लेकिन उसको सपोर्ट भी किया है थोड़ा सा, यू नो। सो आई थिंक वो मिडिल ग्राउंड में लेके चल रहे हैं, बिकॉज अविनाश इन लोगों को चाहिए। अविनाश के बिना ये आई डोंट थिंक अभी ये सीजन चल सकता है, बाद में कोई और खड़ा हो जाएगा, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी के लिए अविनाश बहुत दे रहा है शो को। मुझे पसंद नहीं है जो वो दे रहा है, लेकिन दे तो वो रहा है, यू नो। Thank you, Indu. I appreciate it. Kanchan is saying I have a different opinion on the episode, and this was warranted for Arfeen, so that he doesn't pass on comments, which he does, whispering while passing by. So good to be checked. हाँ, मेरा भी यही है, वो बहुत passing shots देता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ही वो समझता है टॉप। एंड ये मैं डे वन से ही कह रही हूँ, मैं डे वन से कह रही हूँ। एंड आई एम वेरी ग्लैड आज उसने क्या कहते हैं क्लियर किया कि आई हैव नथिंग टू डू विद साइकोलॉजी और साइकायट्री, बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत अफेंड हो रही थी कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है एज अ कोच, यू नो। तो आई एम वेरी ग्लैड कि उसने कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस साइकोलॉजी, बिकॉज अदरवाइज आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट दिस गाय इज डूइंग। एंड मुझे तो उसकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी, आज भी मुझे इस बात नहीं समझ आ रही थी। आई डू द हार्ट, I search for the heart, I push the heart, and I'm like, excuse me, the heart does nothing except pump blood. Okay, ये जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब यहाँ से आते हैं। इतना तो लोगों को पता होगा ना। Like, please tell me this, guys. At a medical level, आपका हार्ट से ब्लड पंप करता है और कुछ नहीं करता। ओके, आपका ब्रेन है जहां पे फीलिंग्स सब आती है, ठीक है। तो आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट दिस गाय इज डूइंग, व्हाट इज यापिंग अबाउट, ही इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। लेकिन चलो अच्छा किया उसने कि उसने ये एक्नॉलेज कर लिया, ही हैज नथिंग टू डू विद द मेंटल हेल्थ फील्ड। लाइक थैंक यू, लाइक आई रियली वांटेड दैट क्लेरिफिकेशन. Helga is saying Sara was indirectly taunting Salman. She's gutsy. मुझे गट्स नहीं लगी, मुझे वो बचकाने बेवकूफी लगी है since day one, since day one, since day one. But mind coach and psychiatrist do have some correlations, right? Their scope of work do have some sort of similarities, right? लाइफ कोच, ये तो माइंड कोच के, आई डोंट नो व्हाट द हेल, आई डोंट नो व्हाट द हेल ही इज अलगा। मुझे तो जैसे सलमान ने कहा, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। यूजुअली ये जो लाइफ कोचेस होते हैं, सम ऑफ देम हैव यू नो द डिग्रीज इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, कुछ तो होगा, और सोशल वर्क, आई एम ट्राइंग टू से सोशल वर्क। यहाँ मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया। और आज उसने खुद कहा है कि नो नो साइकोलॉजी, नो साइकायट्री। तो ये कर क्या रहा है, व्हाट इज इट डूइंग? फिर तो कोई भी सड़क से उठ के पुश कर, वो कह रहा है नज करना है, वो तो कोई भी आके नज कर देगा फिर। Like I don't understand. I'm really confused. I feel Shehzada is rarely seen also. हाँ, day one शहजादा बहुत बोला, डे टू बोला, उसके बाद उसकी बोलती ही बंद हो गई है। तो अगर शहजादा कुछ ना करे तो मुझे लगता है उसको भी रफा दफा कर दो, रवाना कर दो उसको, उसका भी कुछ वहां यू नो तुक नहीं बनता होने का, इफ ही इज नॉट गोना डू एनीथिंग। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ओवर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस घर में ओवर करने वाले भी लोग बहुत हैं। पर आई गेस people like that, I guess. भाग्यश्री कह रही है what a waste of time that was today. No, I loved it. On the contrary, मुझे बहुत अच्छा लगा है. I think कि पिछले हफ्ते का वीकेंड का वार waste of time था, कुछ नहीं उन्होंने किया, कुछ हैंडल नहीं किया। And today, under difficult circumstances, सलमान ने हैंडल किया है. This is why I have more appreciation for him. It's very hard, guys. आपका कोई नजदीकी इंसान की लाइफ चली जाती है, वो भी ऐसे, and then you have to show up. You know, that's very hard to do. वो भी इंसान है. Like, you know, we think of Salman as some superstar, some machine. ये तो काम ही है, पैसे उसने लिए हुए हैं तो काम करेगा. हाँ, पैसे तो हम भी अपने काम के लिए लेते हैं, लेकिन जब कुछ ट्रेजेडी होती है, we take some time too to get normal, to do things. तो I think कि just, you know, थोड़ा सा hate,
थोड़ा सा हिट कम आज सलमान के लिए, मुझे लगता है. Okay, Karan saying if he was in Avinash place was fake because at first place he didn't kept him there. What? Karan saying if he was in Avinash place was fake because at first place he didn't kept him there. I don't know what that means. Okay. Arey yaar, Big Boss is a business and Avinash is important for business. If they don't motivate him, the business will flop. Exactly. Exactly. ये तब तक इसको enhance करी जाएंगे तब तक जब तक ये कोई crazy line cross नहीं करता, जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता. क्योंकि हमने बार बार देखा है कभी कभार एक इंसान इतना करता है उसको कुछ नहीं कहते, फिर एक टाइम आता है जहां सीधा नीचे गिराते हैं उसको. तो who knows, every year can be different, लेकिन ये हो सकता है. लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अपनी चाल बदल ले. Maybe, who knows? Okay. Hi, hello, how's it going? Even I don't like Avinash. See, I think अविनाश को या लोग पसंद करेंगे या लोग नहीं पसंद करेंगे. I think ज्यादातर इस घर में personalities ऐसी ही हैं. या लोग करण को पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे, या विवियन को पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे, या चाहत को पसंद करेंगे ना करेंगे. I think middle ground बहुत कम है किसी contestant को लेके. Maybe शिल्पा middle ground में है. कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग are like yeah whatever we don't mind. तो I think maybe शिल्पा middle ground में आती है, maybe शहजादा अभी middle ground में आता है कि ठीक है, like भी नहीं है, dislike भी नहीं है, बस चल रहे हैं एमी से. You know what I mean? I think इस season में बहुत extreme likes and dislikes चल रही है. बहुत कम लोग हैं जो लोग are like whatever, it doesn't make a difference to me. I think Arfeen और सारा भी इसी कैटेगरी में जाते हैं. या आप उसको पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे. I think even Isha and Alice for that matter, खासकर ईशा, या पसंद करोगे या ना पसंद करोगे. I just really think that's what I'm saying. Arfeen did make gestures, I mentioned those other day. वही तो है ना नेहा, इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप बहुत कुछ कह देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है, कर देते हैं, लेकिन जब आप कॉल आउट होते हो देन आपको समझ नहीं आता, देन यू डिसएग्री, देन यू से नो 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 दैट डिडंट हैपन. एंड गाइस वो सब छोड़ो, वी हैव ए एंट्री आज फाइनली. I don't know if this is his first time. Aside from the premiere, this might be his first time, guys. So give it up for H to the Bizza. Hi. हेलो नमस्कार. नमस्कार. तो बताइए कहाँ थे आप? Grocery store. Grocery store. Yeah, he was doing some grocery shopping. So Ishna Biza, मुझे पता है you have a lot of opinions about Arfeen today. तो Arfeen से ही शुरू हो जाओ. हाँ देखो यार, एक तो ना ये पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं हर सीजन में, पता नहीं ये वेले लोग जो बैठे होते हैं अरफीन जैसे, समझ नहीं मुझे तो आ रहा था ये बंदा पीएचडी है माइंड को. देखो जो प्रोफेशंस होते हैं, आई रिस्पेक्ट द प्रोफेशंस. एक हमें पता है यहाँ पे करियर कोच होते हैं, मतलब कि दैट्स वेरी वेल नोन कि भाई जो आपकी देखो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी बताता हूँ क्या क्या होता है ये, क्योंकि सलमान भाई थोड़े से कंफ्यूज है, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन आज ये खत्म कर रहा हूँ. एक होते हैं पहले शुरू करते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट. जैसे कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना. तो वो पीएचडी नहीं होती है, दैट्स अ लेवल बिटवीन जो साइकाट्रिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं एमडी, राइट, दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन. और एक होते हैं बीच में जो क्लिनिकल स्टडीज करते हैं और दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मगर वो जो रेगुलर पीएचडी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उससे एक ऊपर लेयर होती है. एक होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो पीएचडी करके वो आप क्या बोलते हैं काउंसलिंग कर सकते हो, वैसे क्या किया हुआ है वो बताओ. नहीं मैं उस पे भी जा रहा हूँ. तो उसके बाद मतलब ये जो होते हैं ना, मेरे दिमाग पे लोगों को जैसे भी लगा, मतलब मैं ये लेयर कर रहा हूँ कि भाई जो जाने माने प्रोफेशंस हैं ये लोगों को पता है भाई, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना. उसके बाद अब जाने माने प्रोफेशन आ गए हैं, वो होते हैं करियर कोच. करियर कोच ऐसे होते हैं मतलब कि वो अगर आपको मुश्किल हो रही है जॉब में, या आप जॉब में हो फंस गए हो, या आप जॉब में हो मगर आपको ग्रोथ चाहिए आगे, तो वहां पर ग्रोथ करने के लिए फिर वो करियर कोच आते हैं, वो हेल्प करते हैं आपकी. वो कोचिंग और मेंटरिंग करके आपको कहते हैं भाई ठीक है आपके नेक्स्ट स्टेप करियर क्या होना चाहिए. बहुत मतलब कि जाना माना प्रोफेशन है एंड एक्चुअली वैल्यूएबल वन, क्योंकि ये जो करियर कोच होते हैं बड़े एक्सपीरियंस वाले होते हैं. लाइफ कोच जो होते हैं, नहीं हाँ फिर नहीं, उसके बाद आते हैं लाइफ कोच.
ठीक है ना। Yes. फिर जो लाइफ कोच होते हैं वो ऐसे होते हैं भाई मेरी जिंदगी झंड हो गई है, मैं क्या करूं। तो फिर वो आते हैं लाइफ कोच वाले आपकी लाइफ को कोचिंग करने के लिए। मतलब वो मेरे हिसाब से इसमें बॉटम वाला प्रोफेशन है इनमें से, जब भी मैंने लो लिस्ट लिया अभी। उसके बाद आते हैं भैया ये भाई साहब अरफीन, माइंड कोच। देखो और कोई कोच नहीं, अब मैं सोच रहा हूं बनने का नी कोच, कि भाई जो ऐसे जो नी वाले कोच होते हैं ना, मैं वो बनूंगा। अभी आप अपने नी कैसे इस्तेमाल करो अगर आपको किसी लड़ाई झगड़ा हो जाए। और नकल कोच, Exactly. क्योंकि मेरा ऐसे मन करता है एक नकल का सैंडविच देने का इस बंदे को। ये आए माइंड कोच, ये कह रहा है भाई मैं हार्ट की डायरेक्शन करनी, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये नहीं पता मुझे। कहता मैं हार्ट की डायरेक्शन करने के लिए फिर माइंड में जाके मैं ये बंदे ने ये पीएचडी किस में की है इस बंदे ने, पहले ये बताओ मुझे। No तो idea. ये तो मतलब कि आपको जो बेसिक 101 होती है ना साइंस, जो हमें मतलब कि 5th-6th ग्रेड में होती है, मतलब वो पढ़ाई जाती है, उन बच्चों को पता होता है कि भैया हार्ट का क्या पर्पस है, माइंड का क्या पर्पस है, और ये वो करके। तो ये बंदे ने आज जो सलमान खान जी ने, और फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोज टू हिम, जैसे कि आपने Yeah. कहा वो आया So स्ट्रॉन्ग बन के, hard. लव्ड Yeah. हिज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, क्योंकि आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ थिंग्स, ओके, यू हैव अ गुड हैंडल ऑन थिंग्स। ही शोड इट। उसने कहा भी इतना कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है फिर भी मैं यहाँ पे आया हूं क्योंकि कमिटमेंट मैंने करी है। लव्ड इट। उसके बाद आके सलमान खान ने, आई गेट इट, लोग कह रहे हैं पूरा एपिसोड को निकाल दिया, निकालना चाहिए ऐसे फालतू लोगों के ऊपर एपिसोड, क्योंकि ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए भैया ये ऐसे फुद्दू लोग आते हैं जो माइंड कोच, ये पीएचडी करके ये वो पैसे हड़पने के लिए और 2 नंबर काम करने आ रहे हैं। आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि सलमान खान ने ये कॉल आउट किया, ताकि भाई आप जब से आए दिन सलमान खान ने बड़ा अच्छा बोला। हर रोज ये अपनी प्रोफेशन को लेके बोलता रहता है, Yeah, हर every रोज day. इसका चलता है ये। तो Yeah. ये लगेगा कि ऑब्वियसली ये अपनी प्रमोशन करने आया, सेल्फ प्रमोशन करने आया, और क्या करने आया, ये पता लेके क्यों Yeah, आया ये नहीं true. समझ आया। And अगर आप सेल्फ प्रमोशन करने आए हो, फाइन, हर एक का अलग अलग गोल होता है बिग बॉस के ऊपर आने का, that's fine, आप करो सेल्फ प्रमोट, right? But then when someone is calling you out on something आप खुद कर रहे हो, then why are you freaking out? And ये मैं day 1 से कह रही थी, इसके और गुणरत्न के बीच में conversation हुई थी, and I was like, ये कोच है, why the hell does he keep talking about heart when the heart has nothing to do with anything? अगर आप माइंड कोच हो तो आप माइंड को पुश करोगे कि हार्ट को पुश करोगे? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक इसको तो खुद नहीं पता ये क्या कर रहा है। अब हार्ट पुश करना है, हार्ट तो वैसे ब्लड पुश कर रहा है, और क्या पुश करोगे हार्ट को? सो इट डिडंट ये मेक एनी चीजें, सेंस टू मी। ही लिटरली लुक्ड क्लूलेस, ओके? ही इज जब क्लूलेस। जो सलमान क्लूलेस उसको बंदे होंगे बार-बार ऐसे ही करते हैं वो, नहीं, जब वो फंस मेरा जाते हैं ना, प्रोसेस राइट। है, मेरा प्रोसेस है, तो सलमान उसे प्रोसेस बता दे, वो भी नहीं बता सकता। पेटेंट मेरा पेंडिंग सिस्टम प्रोसेस है है, उसका बंदे मेरा का। सिस्टम है, सिस्टम बता दे, सिस्टम भी उसको नहीं पता। Then Salman goes, you have to listen to people that you're coaching, right? No, 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 I don't listen. तो कहता आप मैं पोक पुश पोक करके कोचिंग करता नहीं, हूँ। तो आप पुश कैसे करते हो जब आप सुनते ही नहीं हो कि बंदे की प्रॉब्लम क्या है actually? So I was just really confused. I am just, like I said, मैं thankful हूँ सलमान की कि सलमान cleared today through Arfeen कि he has nothing to do with psychology and psychiatry, because मैं इतने दिनों से कह रही थी ये क्या बकवास करी जा रहा है, he's not making sense to me. And आज जो सारा इतनी ट्रिगर हुई थी, I get it, आपके हस्बैंड को वो पोक कर रहे हैं बार बार, वो आई गेट इट, आपको बुरा लगा होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम, ओके, you and your husband were the one who made a million judgments on a million people, ठीक है। अगर हम वो स्टेज वाला किस्सा हटा भी दे, ठीक है, स्टेज में उन्होंने आपको कहा था बोलने के लिए, जैसे अरफीन वो से कि मेकर्स ने कहा था मुझे ये सब करने के लिए, ठीक है, चलो आपने मेकर्स की सुन ली स्टेज पे, बेनिफिट ऑफ द डाउट मैंने आपको दे दिया। In the episodes, okay, you have said people कि they are aggressive, they're violent है, कुछ ना कुछ करेगा ये इंसान, कुछ ना कुछ करेगा ये इंसान। जब इंसान ने कहा how in the hell are you making these judgments about me? Oh, that's my professional opinion. तो अब जब फिर प्रोफेशनल ओपिनियन आप लेके आ रहे हो, then someone is and can point it out. यहाँ पे आप टिप्पणियां बना रहे हो दूसरों के कैरेक्टर के ऊपर या पर्सनालिटी के ऊपर, लेकिन एक इंसान ये नहीं कह सकता कि कोच को कोच की जरूरत है। How, excuse me, you can call another person violent and aggression, पता नहीं क्या करेगा, पर दूसरा इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कोचिंग की जरूरत है। And then
जिस इंसान को आप कह रहे थे अग्रेशन है, ये फलाना ढिमकाना, ओके फाइन, लेकिन क्या कम अग्रेशन आपकी माइंड कोच वाइफ दिखा रही है? शी इज स्लैपिंग हरसेल्फ तो एंड ये व्हेन फालतू के सलमान लोग asked हैं her, वो दोनों no no, कीर्ति then Salman said you're going around slapping yourself, is that okay? She goes yeah. चलो भाई, तो अगर ठीक है, then why are you making judgments on other people's aggression? ये नहीं मुझे समझ आ रहा। तो ये जो पूरा confused मियाँ बीवी का चक्कर चल रहा है ना, that's what needs to be called out, and I'm glad कि call out हुआ है। कॉल आउट करा है। Essentially यही था कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है, फिर बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। Like you are very confused what you guys are doing, and ये I think by the end of it अफीन के पल्ले थोड़ा पड़ गया था। Okay, I think Sara के पल्ले कुछ नहीं पड़ा है. Like Sara is not. She was too like annoyed or whatever it was. एक तो Salman देखो said, you know, whatever कि वो हमें अविनाश ने कहा वो victim बने हुए हैं, फलाना ढिमकाना. You know, I think she was obviously upset कि अविनाश को तो कोई कुछ नहीं कह रहा. अरे भाई, अविनाश जरूरी है इस सीजन के लिए, उसको कुछ नहीं वो कहेंगे जब तक लोड नहीं पड़ेगी. You are not important. Hierarchy होती है बिग बॉस में, even though you think there's not, there is a hierarchy. And ये आप अगर 18 सीजन में देख के आपको समझ नहीं आई ना बात, then no one can say anything to you because there is a hierarchy. And Tino, what was that funny dialogue you said? I remember I was like, ये लाइव पे बोलना जरूर. I forgot. मैंने वही कहा था ना कि वो कह रहा था कि भाई ये हार्ट की डायरेक्शन का ये बंदा है, मतलब देखो Yeah. एक तो ना इसके पता नहीं कौन सा पैटर्न पेंडिंग इसका फॉर्मूला है, ये कहता है नहीं प्रोसेस मैं नहीं बता सकता। Yeah. इसको खुद ही नहीं पता क्या है प्रोसेस। बल जो बेचारे लोग पैसे वाले हैं ना पैसे वाले हैं उनकी ले मतलब कि उनकी ले लेके मतलब ये बंदे दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो ये जो स्नेक ऑयल सेल्समैन कहते हैं ना इनको, यहाँ पे होते हैं भी स्नेक ऑयल, जो वो किसी और के आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊंगा क्यों कहते हैं स्नेक ऑयल। स्नेक ऑयल बेसिक होता है फेक चीजें जो बेचते हैं करके। तो ये जो स्नेक ऑयल सेल्समैन होते हैं वो ऐसे होते हैं, जब इनके ऊपर उंगली आती है ना और इनके ऊपर अटेंशन आती है तब इनकी फटती है, जैसे इन दोनों मियाँ बीवी की आज फटी। द अदर थिंग वॉज कीर्ति की वो मेरे को पता नहीं क्यों इरिटेशन ये होती है, ये कीर्ति हर साल यही होता है जब भी जब कपल आते हैं, दूसरे पार्टनर स्पेशली फीमेल जब कुछ कहने की कोशिश करती है, ये भी बंदा आज टोक रहा है उसको, नहीं नहीं नो नो लेट मी आई विल डू इट, नो नो यू स्टॉप, नो नो यू डोंट से एनीथिंग। ये क्या हो रहा है ये? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी कि भाई एक तो ही शुड बी हैप्पी कि भैया मैंने इसकी जो फेक गिरी है वो कॉल आउट हुई है और बेइज्जती हो रही है इसकी वहां पे, इसकी बीवी बेचारी उसको डिफेंड करने के लिए वहां पे बैठी है। लेट हर से समथिंग, दैट्स ओके, इट डजंट मेक यू लेस ऑफ अ मैन कि भैया अगर आपकी बीवी भी आपको सपोर्ट कर रही है, कह रही है कुछ, लेट हर से। कितनी बार इस बंदे ने टोका है? यहाँ पे ना बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कल के लिए। गाइस, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट लाइव, तो उसके ऊपर जो बोलते हैं मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही मैंने सुना है किसने किसके बारे में क्या कहा है। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, मेरे होते हुए कोई बकवास नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट अलाउइंग एनी काइंड ऑफ शेमिंग ऑन एनीथिंग व्हाटसोएवर, ठीक है? लेकिन दैट वाज डन एंड इट वाजंट इन माय प्रेजेंस, तो उसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे क्योंकि आई कैन नॉट जज फ्रॉम एनीथिंग। मैंने देखा भी नहीं है और ना ही मुझे शौक है जाके देखने का। Second of all, this was my second time addressing this. I'm not gonna address it again. आपको प्रॉब्लम है, आप पर्सनली जाके उन लोगों से कांटेक्ट करो जिन्होंने जो बोला है। Don't tell me again and again because I don't control or own anyone. ठीक है? That's all I want to say on that. Okay. And that being said, जो हमें देख रहे हैं, please like करना and subscribe करना. Odi, go. What you just said was it about me? CNPTR comment कर रहे हैं, OD calling. I don't want to Karan get into Ganja. that. Odi, we can talk separately. You talk about today. No. एक सेकंड, जब एक स्टेटमेंट दी तुमने कमेंट किया, मैं एड्रेस कर देता हूँ क्योंकि ऐसी कोई शेमिंग नहीं हुई है। क्या बात की है जी? मैं जरा पढ़ता हूँ इनका कमेंट, एक सेकंड। CNPTFR OD called Karan Ganja yesterday. डार्लिंग CNPTFR, आपने अगर नहीं सुना मैं रिपीट करता हूँ। मैंने कहा एक कहावत है, गंजा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। वॉज इट टारगेटेड टू करण? एक कहावत बोली कि जिसमें जो चीज है नहीं उसका उसने करना क्या, गंजा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, ये स्टेटमेंट थी। अब आपने करण पे लेके जानी, आप लेके जा सकते हो, देन डोंट टेक इट ऑन मी कि आई कॉल्ड समबडी गंजा, बट व्हाट यू रोट, यू कॉल्ड हिम अ गंजा। Let's move on. नो, व्हाई वुड आई फजूल की बात करके क्या नाम है गलत चीज क्यों क्रिएट करनी है?
Okay, let's ऐसे move ही on. Let's move on. Talk about today. इट वॉज अगेन बोरिंग वीकेंड का वार। सलमान इतने करेक्टली स्टार्ट हुए, ठीक है, मतलब मेरे नजदीक जो मुद्दे होने चाहिए थे बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट हुए, चाहे वो शिल्पा वाला मुद्दा था, चाहे अविनाश वाला मुद्दा हुआ, Mhm. रजत की हिपोक्रेसी कॉल इन करनी थी वो भी हुई, जो कल खुद बोल रहा था Mhm. आप लड़ रहे हो कि ये खाना कैसे नहीं देगा, ये रोकियों के साथ ये करेगा, लेकिन जब आपके ऊपर ही आती है, और विवियन के साथ भी यही मैं कल बोल रहा था कि विवियन को आप बोल रहे हो मैं अंदर हूंगा, मैं रोकूंगा, और आपने सलमान को खुले में कहा मैं तो दूंगा ही नहीं। तो Yeah. फिर बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्रूव जो अविनाश कर रहा था वो ठीक था, तो फिर आप उसके अगेंस्ट क्यों थे? फिर अगेन बात थी, मतलब जो चीज पूरे पिछले 3 दिन हमारा सिर पकाया है, आरफीन वाले मुद्दे के ऊपर मुझे लगता है कि सलमान स्ट्रेस्ड इट अननेसेसरली। वाई देखो, जो आपको आरफीन से दिक्कत है, टॉक ऑन दैट, जो हमने पॉइंट्स रखे हैं, आप माइंड कोच बन रहे हो, देन यू आर अ कंटेस्टेंट, यू से यू आर ह्यूमन, देन बी रेडी टू बी टारगेटेड, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? Exactly. दैट विल ओनली, ये यहां तक रहना चाहिए था। Yeah. वाई सलमान नीड्स टू, जब वो मेटाफोर पे आए, मेटाफोर मतलब फिर आप एक्सेंट को लेके फंसे हो, वो मुझे बहुत डिस्टेस्टफुल लगा। सारा का मुझे फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है, लेकिन देन यू नीड टू टैकल हर प्रॉपर्ली ना। आप, मैंने कल ही बोला था कि मुझे सारा की वो बात अच्छी लगी कि अगर आपको एक फीलिंग आई है, वो कोई भी हो ना, जब आपको एक चीज फील होती है, जब बिग बॉस ने कहा मैं तो इनका माइंड रीड कर रहा था, मैं इनका प्रोसेस जान रहा था, ये वहां से चालू हुआ है। और वहीं सारा ने बोला कि बिग बॉस इस तरह से करे, लेकिन डार्लिंग सारा, यू ऑल्सो टारगेटेड बिग बॉस जब तुम कह रही थी अपने टाइम पे कि Exactly. इनका खाना बंद करो। Yep. तो बात वही कि अगर आपको ये करना है तो आपको कॉल आउट करना है, तो बिल्कुल ठीक है, Yeah. लेकिन वो जो पूरा ज्ञानबाजी चली, आपका प्रोसेस ये है, फिर सलमान ट्विस्टेड वर्ड्स अलॉट। मैं नहीं बोलता, ठीक है, कि आरफीन गलत नहीं है, आप उनको पकड़े, लेकिन जिस तरह से करना शुरू किया उल्टा, समय डाउन द लाइन मुझे लगा वो इतनी टारगेटिंग हो रही थी कि जहां पे फिर सलमान बुरे लगना शुरू हो गए मुझे। ये मेरा पर्सनल है कि आपने मुद्दे घर से रेलेवेंट रखने हैं, आप बोलो ये बातें हुई, तुमने ये किया, आप करेक्ट गए जब आपने बोला जी कि तुमने नेस्टी बोला, ये बोला, और जब आप उसकी प्रोफेशन की बजा रहे हो, सी, इवन एक्टर्स का एक्टिंग प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि मैं तो एक्टर्स डिबेट दे देता हूँ जहां पे ये प्रोसीजर आता है, समबडी गोज टू आइसोलेशन, जो खुद को सब्जेक्ट के हवाले कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मतलब हर एक का अपना अपना प्रोसेस हो रहा होता है। तो अगर तो आपको वो पूछना था तो वो इंटरेस्टेड क्यों था, आपके लिए इंटरेस्टिंग क्यों था? आपके लिए होना चाहिए था आरफीन, क्योंकि आपने स्टार्ट बिल्कुल ठीक बात की, एक लॉर्ड ऑफ टाइम बनाए गए हैं जो कि आउट ऑफ फ्लूक बन गए, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को निकाला। वो Exactly. सलमान करेक्ट चीज पकड़ रहे थे, आप सही पकड़ रहे थे, लेकिन सलमान की जो टारगेटिंग थी वो स्टार्ट होती है सही डायरेक्शन में, और फिर वो वाकई केयर में चली गई, वो इतने अंधेरे में गई कि वो आगे खाई नजर मतलब नजर ही नहीं आ रहा। इवन सलमान गॉट क्लूलेस टू मी। आपने अपने वर्ड्स टनल के वो भी ट्विस्ट किए, वो ही वॉज राइट। फिर एक और चीज है, मैं वो भी चीज समझता हूँ आरफीन की, क्योंकि ये है शो ऐसा कि आप कह रहे हो ना कि जी आप कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो, ये नहीं होने दे रहे हो, वो नहीं होने दे रहे हो, मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। सलमान भी आके से ट्रिगर कर ही रहे थे। अगर आपकी गेम आरफीन को, मेरे लिए वहां तक ठीक होता कि तुम बोल गए हो कि तुम्हारा काम है लोगों को ट्रिगर करना कि वो अपनी डायरेक्शन बदले, सी, वो चीजों की हद तक ठीक है, गेम की हद तक ठीक है, लेकिन वो जो इतनी डिटेलिंग की है, फिर वो एक्शन की नकल उतार देना, वो मेरे लिए डिस्टेस्टफुल हो रहा था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगेन टू मी वो इतना अननेसेसरी खिचड़ी, वो कहते हैं ना कि ज्यादा खाना कुक कर दो तो चावल अकड़ना शुरू होते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो मजा मेरे लिए नहीं रहा फिर। तो मेरे लिए इतना बुरा नहीं था एट ऑल। जो बंदा खुद अपने प्रोफेशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, देन आई थिंक यूर अ फेयर गेम, लाइक सीरियसली। एंड यहाँ पे उन्होंने कम से कम 50 बार एपिसोड में, तो कम से कम 50 बार इन्होंने, आज के नहीं मतलब थ्रू आउट द सीजन सो फार, मैंने माइंड कोच सुना है। ओडी हैज हर्ड मी ऑलमोस्ट एवरी लाइव से ये क्या Even I बकवास called it कर out रहा many है times. Yeah. माइंड कोच पे, व्हाई इज ही डूइंग दिस। ओडी ने मुझे सुना है, मैंने बार बार एड्रेस किया है कि दिस इज नॉट व्हाट साइकोलॉजी टेल्स यू टू डू। तो आज अच्छा था कि इसी बहाने उसने कह दिया आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, ओके, बिकॉज पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। एंड देन
ये इतना लंबा ना खिंचता अगर ये इंसान सही ढंग से जवाब दे पाता। He kept, I was like, what are you doing? You're saying no, no, no. किसी बात पे हाँ कहेगा कि हाँ मैं ये करता हूँ, मेरा सिस्टम है, मेरा ये है, तो क्या है सिस्टम, क्या है प्रेफरेंस, वो भी उसने नहीं बताया। इतना टॉप सीक्रेट ये सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, जो भी यहाँ सिस्टम लेके आता है, it becomes a big thing. तो I didn't have an issue with that. I do think कि सारा से ज्यादा पूछना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अरफीन। अरफीन का तो एक बड़ा 2 टॉपिक्स हुए थे, एक वो करण वाला पिछले हफ्ते एंड दिस अविनाश के साथ, राइट? उसके साथ आपने एड्रेस कर लिया, ठीक है। Why didn't they address with Sara? Like, Sara, what exactly is your issue? What is your problem? Okay, तू ओवर ड्रामेटिक फेक फूक ये एक्ट्रेस के ऊपर तू बात कर रही है, and aren't you doing the same thing? तू यहाँ पे किसी को अग्रेसिव करार देती है, aren't you being aggressive? तो यहाँ पे I think there were better ways to target Sara, but once again, I have to say I really appreciate Salman, all this insane stuff happening outside of Big Boss, and तब भी वो यहाँ आए, and yes, मैंने भी वो news reports पढ़ी थी that he was only there for like 2 or 3 hours, and ये सब वो करके वो बाहर चले गए. This is exactly why कल फिर से laughter chef का वो हो रहा है, because Salman wasn't there the entire time. And देखो, so I guys, do understand that. And second of all, ये जो शिल्पा के ऊपर उन्होंने टॉपिक छेड़ा था with अविनाश, I think उन्होंने अविनाश को भी indirectly सुना दिया, एंड इन्होंने घर वालों को भी इनडायरेक्टली सुना दिया, बिकॉज ये मैं भी कह रही थी कि अविनाश जो कर रहा था इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो क्यों कर रहा है, घर वाले क्यों कर रहे थे वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि इस वे से हैंडल हुआ है। यहाँ पे अविनाश को नहीं कहा गया कि यू आर रॉन्ग, यू आर राइट एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, राइट? ही सेड if you were in that position, what will you do? ठीक है, that's it. Then yahan Karan and all these other people, they didn't tell them you were wrong. Why didn't you eat food earlier? What was this happening? They didn't say that either. क्योंकि अगर ऐसे कहते तो अविनाश शायद अपना अप्रोच चेंज कर देता। Karan and Shilpa and ये जब सोए हैं दूसरे, they would have changed their approach. So that didn't happen. I'm very glad. आप indirectly सुना दो, जिसको जो सुनना है वो उनकी क्षमता। Second of all, even जो रजत का टॉपिक हुआ, I didn't have any issue with that either. क्योंकि लोग कहते हैं ना, it's all dependent on your position and your perspective. तो अगर वो अविनाश की पोजीशन में होता तो वो हरकतें करता, लेकिन वो अभी अविनाश की पोजीशन में नहीं था, वो दूसरी टीम quote unquote outside jail टीम में था, तो वो उनका ही साइड लेगा। So I don't understand कि इसमें रॉकेट साइंस क्या है। अगर उसको जेल में डालना है, फिर देख लो वो क्या करता है, सबकी हरकतें चेंज हो जाएंगी। रजत की हो जाएंगी। रजत ने कहा कि मैं तो देता ही नहीं खाना, राइट? एटलीस्ट वो ओन अप तो कर रहा है। लेकिन गाइज, व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट दैट? ही इज आउटसाइड ऑफ द हाउस, तो वो क्यों ना डिमांड करे खाना, वो क्यों ना ले खाना, उसके पास नहीं है तो वो डिमांड करेगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड यहाँ पे व्हाट द बिग gotcha moment was. Even Salman didn't say, oh gotcha, he didn't say that. He goes, exactly, you owned up to it, other people will not if that's not their personality. And यहाँ जिस तरीके की पर्सनालिटी रजत ने दिखाई है अपनी फ्रॉम डे वन, अगर वो ये वाला आंसर ना बोलता तो शायद हम कहते oh really रजत, really? लेकिन I'm really glad he said that. It made a complete sense to me. And then ये जो शिल्पा है, I have to say, out of all the girls इस season, I am behind Shilpa. मुझे शिल्पा बहुत ही ज्यादा पसंद है, okay? Maybe आपको वो dramatic, emotional, sensitive लगती है, fine. मैं ना नहीं कहती for those words. She is emotional, she is sensitive. लेकिन मुझे पसंद है कि वो अपने लिए खड़ी रहती है, मुझे पसंद है कि वो अपने points रखती है, मुझे पसंद है कि नहीं उसको खाना, नहीं उसको करना तो नहीं करना, like that's fine, लेकिन yes, आपकी हेल्थ अगर खराब होती है, all that I also agree. सलमान जो कह रहे थे, I agree with that. लेकिन वहां पे उसको लग रहा था कि मेरे साथ ये हुआ है। अगर वहां पे for instance क्या कहते हैं, शिल्पा कह रही है कि मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगा है, तो लगा है,
अगर वहां अविनाश कह रहा था मुझे ये बात बुरी लगी है तो लगी है, तो एवरीवन विल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। लेकिन ये मैंने उस दिन भी कहा था जब मैंने सुना था, जब अविनाश ने शिल्पा के लिए कहा था यू आर नॉट इन माई गुड बुक्स, यू विल नेवर कम इन माई गुड बुक्स, और मैंने कहा था ये है कौन, ये क्यों जाएगी उसकी गुड बुक्स में। आई एम रियली ग्लैड कि आज शिल्पा ने कहा कौन सी गुड बुक, कैसी गुड बुक, मैं क्यों आऊं तेरी गुड बुक में। सो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दैट। यहाँ शिल्पा क्यों तेरे गुड बुक में आना चाहेगी? Why does she need to behave a way to get into your good book? What the hell is your good book? यहाँ पे she doesn't need your good book. तो यहाँ पे I really liked Shilpa, and मुझे I just have to say कि I'm just very glad कि you know एक ये 90s की जो आई है, you know I know हर couple of seasons someone comes from the 90s, I get it, a nostalgia factor हो जाता है, I get that, लेकिन I feel like ये बंदी जो है she is there man, वो 100% इस गेम में है, उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी दिखती है, इसके पॉइंट्स भी दिखते हैं, एंड आई होप कि ये और बिल्ड कर पाए इसके ऊपर, नॉट जस्ट विद अविनाश बट विद अदर पीपल इन ओपिनियन। आज वो एलिस एंड क्या कहते हैं ईशा को ही सुना रही थी कि you know this that and the other, so I'm glad that she has this। और मैं और देखना चाहती हूँ कि कल परसों अगर कोई और कुछ कह दे, सुना दे। नो शी डिड इट विद रजत एज वेल, रजत के साथ भी सामने ये खड़ी हुई थी, so I know she's capable। I'm just very happy for Shilpa, I'm very glad कि she इसको opportunity मिली है and she's doing the best with it। I hope वो ऐसा ही करती रहे and आगे तक जाए, क्योंकि मेरे लिए Shilpa has been the standout amongst the women, and उसके बाद अगर कहना है तो चाहत है, you know चाहत, शिल्पा जहां मुझे जेन्युइनली पसंद है, चाहत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चाहत एक बहुत ही अच्छा और स्मार्ट गेम खेल रही है, वो वोकल भी है, वो पूरे घर उसके खिलाफ है और तब भी वो खड़ी रहती है, तो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ये जो चाहत है, एंड इतनी वो स्ट्रॉन्ग है कि दूसरों की वो हजम नहीं हो रही सिंस डे वन। चाहे आप उसको फेक माने, ड्रामेटिक माने, मैं अग्री करती हूँ, आई अग्री, लेकिन शी इज यूजिंग दैट टू हर एडवांटेज। इस घर का सबसे पॉपुलर इंसान उसके खिलाफ है और ये डरी नहीं है ये बंदी। उस पॉपुलर इंसान ने जो कहा है दूसरों ने गांठ बांध ली है उस बात की कि दिस इज अ बैड पर्सन, इसके शी इज इगोइस्टिक, शी इज ड्रामेटिक, शी इज दिस, है ना, एंड शी इज स्टिल डूइंग हर थिंग। तो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, एंड आई होप कि ये बंदी एंड तक खड़ी रहे। आई डोंट नो, मे बी एक दिन मुझे वो पसंद आ जाएगी, आई डोंट नो, लेकिन शी इज डूइंग वेरी वेल फॉर हरसेल्फ, एंड आई होप जैसे आज इस मुद्दा पे यू नो आंख डाली है मतलब फोकस डाला है, आई होप कल सलमान चाहत के मामले पे फोकस डाले कि why in the hell are you guys treating her like a second class citizen? इतना बुरा किया क्या है इस चाहत ने? And if वो नहीं एड्रेस करना, I hope they boost her कि चाहत, everything you've done is the game, you're doing really well, keep it up। शाबाशी अगर उसको मिल जाती है ना, I think that'll be good enough। चाहे आप दूसरों को एड्रेस करे ना करे, this girl should have a spotlight on her। I think वो इनको नचा रही है and ये सब नाच रहे हैं। I think she's doing really good। Guys, please like करना, subscribe करना। अब Tino की सुनना। Go Tino। Yeah, I agree 100%। शिल्पा की बात करूँगा मैं तो बिसाइड्स दैट 90s नॉस्टैल्जिया वो सब करके साइड पे करके, मैं शी इज कमिंग अक्रॉस टू मी एज अ ट्रू गेमर इसके अंदर। सारी देखो, एक होती है ना जो दिमाग वाले होते हैं लोग, आई थिंक आउट ऑफ एवरीबडी राइट नाउ शी इज द मोस्ट दिमाग वाली बंदी इन द हाउस। देखो स्ट्रैटेजी देखो, वेरी बेसिक, राइट, खाने का वो हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, राइट, एंड ऑल शी हैड टू डू वाज, आई मीन हमने देखा है, yell scream करके, राइट, नो आर्ग्यूमेंट, बस वैसे चीखे जा रहे हो सारा दिन, कान में दर्द हो रहा है, वॉल्यूम म्यूट हो रही है, राइट, नॉट एंटरटेनिंग। और ये बंदी ने पूरे मतलब मोस्ट ऑफ द घर को अपनी तरफ कर लिया ऐसे करके भी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो भूख हड़ताल कर रही हूँ। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? आई मीन जो दूसरे बंदे की फट रही है वहां पे अविनाश की बैठ के जेल में कि मैन ये क्या हो गया, मैं क्या करूं, वो अपनी तरफ से कह रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं मैंने नहीं कहा। वहां पे भी जबरदस्त आर्ग्यूमेंट, वेरी स्ट्रेटेजिक आर्ग्यूमेंट कि आपको लगा होगा, आपने नहीं कहा, मेरे को तो लगा ना, आप मेरे को कैसे कह रहे हो को कैसा मैं फील करूं। वाओ मैन, ब्रिलियंट। और यहां पर देखो मतलब हाउ डू यू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन,
यहाँ तो भाई वो बैठा रहे, रोता रहे, क्या बोलते हैं, चीखता रहे, राइट, और ये खा ना खाए, बिग बॉस इंटरवीन करें, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, राइट। द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज कि उसने सॉरी तो बोलनी थी भैया, फटफटा के जैसे भी करने थे, दैट वाज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस थिंग। और यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम कह लो, जो भी कुछ कह लो, आई डोंट केयर, डजंट मैटर, मगर यहाँ पर उसने बैठ के, जैसे कीर्ति आपने कहा कि वो भाई गुड बुक्स पे मेरी को, भाई कौन है तू, कौन सी तेरी कौन सी बुक लिख रहा है वो, दैट वाज लाइक अमेजिंग। आई मीन कहाँ है शिल्पा, राइट, हैज डन अमेजिंग वर्क, और वर्क की कंपेयर करो, कौन है ये बंदा, राइट। और इसी को वहां पे शिल्पा ने उसकी पैंट उतार दी 2 सेकंड के अंदर, और बात में फिर भी आफ्टर ऑल ऑफ दिस स्टफ शी वॉन बिकॉज वहां पे फिर वो आए लेके, ओ अच्छा खाओ खाओ, वो भी रो रही है, आई डोंट केयर, एक्टिंग कर रही है जैसे नहीं कर रही, शी इज प्लेइंग विद वेरी वेरी तेज दिमाग, मैन, because that is a perfect strategy. There's a lose situation for the other guy. There's no other way कि अविनाश would win in that situation. जैसे वहां पे उसने स्ट्रेटेजी गेम करी, यहां पर अगर जो घर वाले हैं, if they, एंड में चाहे वो जेन्युइन अपॉलॉजी भी नहीं थी, सॉरी मुंह से निकला ना, yes, और निकला और फिर उसने चम्मच खा लिया, राइट, तो yeah, that's it. नहीं, और फिर बाद में कहती वो it's okay man, I mean just brilliantly played. The thing was, अविनाश ये करवा रहा था घर वालों से कि सॉरी मंगवाऊंगा, फिर मैं खाना दूंगा, वो कहती चल मेरी माफी मांग, तो एंड में उसने सॉरी बोला, चाहे फेक बोला, जो भी बोला एंड फिर उसने खाया। और ये नहीं पता कि शिल्पा क्या पता फेक कर रही हो, हमें क्या पता है। Damn girl, damn. या वही तो कीर्ति, मैंने वही कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन से अगर जो देखो विन और लूज की बात करते हैं, जैसे भी कह लो, लूजर इज अविनाश इन दिस इजिली। वहां पे लोग, वो रो रही है, लोग बेचारे आ रहे हैं, नहीं चलो मैं लेके आया हूं, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा, वहां पे कैमरे उसके ऊपर है, अटेंशन उसको मिली है, नंबर 1, नंबर 2 वहां पे अविनाश की फटी हुई है, वो इधर से उधर भाग रहा है कि भी मैं कैसे इसको क्या कहूं, मैं आई हैव टू से सॉरी आई गेस, और मैं क्या कहता हूं। और ये बेस्ट बात थी गाइस, जैसे उसने कहा कि ओके ओके आप लोग, अगर आपको लगेगा आई एम सॉरी, कहती it's okay, it's fine. I was like, man, ये तो damn amazing. और वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग समझ, they need to understand, man, she is shot there on this thing and she will eat them all alive, right? ये अगर करते रहो ऐसे, ड्रामा कर रही है, एक्टिंग कर रही है, whatever it is, she took the footage today. वीकेंड का वार सामान आने से पहले आधा घंटा तो हम उसको ही देख रहे थे, इनका क्या हो रहा है यहाँ पे, बैक एंड फोर्थ। That is just, that's how you get to top 3. Simple as that. Yeah, exactly. Okay guys, जो हमें देख रहे हैं अब देखते रहिए, एंड प्लीज लाइक भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। कंचन ने यहाँ कहा है H2 के लिए धमाकेदार कमेंट लगा दो। Okay, let me find it real quick. Hold on, where is it? Hold on. धमाका कमेंट क्या है? Oh yeah, right here. Okay, there you go. Hopefully you like that, Kanchan, and जिसको अच्छा लगा है please like करना and subscribe करना। Odi go. अच्छा, आई डोंट नो टीनू, लेकिन थोड़ा सा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज मुझे नहीं लगा ड्रामा शिल्पा की तरफ से। दिस इज व्हाट शी इज। आई डोंट फाइंड हर ओवर ड्रामेटिक, आई डोंट फाइंड हर एग्जैजरेटेड इमोशंस। दिस इज व्हाट शी इज। शी इज अ वुमन ऑफ डिफरेंट ईरा एंड शी इज रेडी टू गिव हर वल्नरेबिलिटीज। मुझे ये चीज उसकी पसंद है, मुझे नहीं स्ट्रेटेजी लगी, ये पर्सनली मेरा मानना है। शी वॉज बैडली हर्ट बिकॉज, क्योंकि उसने जब एक पॉइंट रखा था कि मुझे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, मुझे बिहेवियर से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं नहीं क्या नाम है देखता कि ये एक स्ट्रेटेजी थी, मैं नहीं देखता कि ये एक गेम प्ले था उसका। यहाँ पे मैं यही कॉल आउट करता हूँ लोगों को पिछले 2-3 दिनों में कि अगर आपका ईगो इतना बड़ा है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ये इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज यू हर्ट मी। तो मैं नहीं देखता कि एक स्ट्रेटेजी थी कि मैं तुझे तेरे घुटनों पे लेके आऊंगी। शायद शिल्पा को उसकी सॉरी से फर्क भी नहीं पड़ना था बिकॉज शी वाज सो बैडली हर्ट, ठीक है। सलमान की बात ठीक थी कि तुम खाने पे क्यों निकाल रही हो, क्योंकि शी मेड इट क्लियर कि मैं तेरा दिया हुआ नहीं खाऊंगी, आई एम गोना डाई इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, राइट। बट शिल्पा नीड्स टू डू वन थिंग, बिकॉज क्योंकि मैं जो घर में बातें होती है हमेशा, दैट इज मुझे रजत की वो चीज लगती है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। शिल्पा ने एक बात की कि आई डोंट नीड योर रिस्पेक्ट, इफ देन डोंट क्लेम टू रिस्पेक्ट मी,
आप मुझे कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करो, एंड नाउ दैट यू आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ कंटेस्टेंट, क्योंकि वो किसी भी कंटेस्टेंट के साथ कुछ भी होगा। विवियन की कल एक बात बहुत अच्छी थी, व्हेन ही वेंट टू सैट विद हर, he was like people, she said he is not nice, and she was weeping her heart out. He is like people nice with you right now won't be nice any further in Yeah. this house is like that. तो मुझे लगता है शिल्पा जो है लड़कियों में अमंग्स में, मैं उनको राइट नाउ टॉप पे डेफिनेटली नहीं देखता, लेकिन आई वुड लाइक हर टू गो टू टॉप, क्योंकि वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं डे वन से ये बोल चुका हूँ, और मैं यही कह रहा था कि वो उसमें बाहर है, और दूसरे शेड्स भी दिखाएं। जब आपने खुद ये बात कर ली है कि ट्रीट मी लाइक अ कंटेस्टेंट, देन फाइट योर बैटल्स विद मोर स्ट्रेंथ। ये चीज आपका एटीट्यूड मुझे पसंद आया, कि जब आपने अपने लिए एक स्टैंड ली है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके गई है। मैं उसको स्ट्रेटेजी नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि शिल्पा इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो कैमरे की फुटेज के लिए करेगी। अविनाश इज काइंड ऑफ पर्सन लाइक दैट, क्योंकि वो गेम प्ले है। ये गेम प्ले नहीं था, ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे था, ये मेरा मानना है। शिल्पा मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी आज, बट मैं यही चाहूंगा कि ये, हाँ, कि ये डिपेंडेंट चीज ना रहे। इवन रजत केस के अंदर भी शिल्पा की कन्फ्रंटेशन नहीं थी उधर, लेकिन रजत मेड फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ, कि वो पहले फिर बाद में उसके पास गया, शी वेंट इमोशनल, उसने उसका रिकंसिलिएशन के बाद में इसका मजाक उड़ाया कि ये कैसी औरत है, ये तो 15 मिनट में वीक हो गई है, तो मैं तो आपकी, मुझे क्या लगे उसका एक फेवरेट हो गया, 25 साल मेरे घर को नहीं दिए, 25 साल मेरे घर को नहीं दिए, और तुमने किसी के घर को क्या दिया हुआ है। रजत का जो मुझे इशू लगता है, रजत का जो मुझे इशू लगता है, कि आप जब ये क्लेम करते हो, देखो इट्स अबाउट ना कि आप कौन सी पार्टी में हो। ही इज नॉट इनसाइड द जेल, ही इज आउटसाइड द जेल, बट जो आप टैक्टिक्स कर रहे थे वो आपके फ्लॉप थे। आपने कहा मैं इसका जीना हराम करूंगा, मैं सारी रात सोने नहीं दूंगा, वो सो गया, खाया पिया, खराटे मारे, फिर कितनी बड़ी बातें क्यों करनी। फिर आप कहते हो मैं वो हूं जो बचता नहीं हूं, बरसता हूं, तो आप नहीं बरस रहे हो, आप सिर्फ बज रहे हो। फिर आप चाहत ने आपको क्या नाम है जीरो कर दिया हुआ आफ्टर अ पॉइंट। तो आप जो बातें खुद रखते हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं वो करूंगा, मैं जेल से होके आया हूं, मैंने ये किया है। मैंने रजत को कभी भी उनकी आउटसाइड वर्ल्ड के ऊपर कमेंट्री करना पसंद नहीं किया, क्योंकि अब शो के अंदर जो है, इसलिए मैंने बोला था कल भी, हाँ कल ही मैंने बोला था कि राइट नाउ जो लोग मोस्ट टॉक्ड अबाउट है, जो घर में कर रहे हैं गुड बैड अगली में, उसमें रजत का नाम मैंने लिया, राइट, कि ये रजत नजर आते हैं। रजत, चाहत, करणवीर, विवियन, अविनाश, ये 5 लोग हैं। शिल्पा इज गोइंग ओवर देयर। मैंने इसलिए शिल्पा का नाम इंक्लूड नहीं किया था कि ये लोगों का मेन चीज है, ये मेन प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। तो रजत जब ये स्टेटमेंट्स देते हैं, कल भी जैसे उन्होंने बोला, एक तो आपको ललकारा नहीं गया था, बेसिक राशन पे बात हो रही थी, आपने उस चीज को मुद्दा बनाना होता है, क्योंकि वो है, बोलना नहीं है उसने भी, लेकिन फिर आगे से कहना मैं चोड़ रहा के करूंगा, फिर हाथ मत बांधो, क्योंकि वो जो टिट फॉर टैट चल रहा होता है वो आपकी पर्सनैलिटी दिखा रहा होता है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। मतलब मैं क्या सोच रहा था कि आपने एक लड़की की नेचर ऑफ कॉल के लिए स्टैंड लिया, फिर आप उस लड़की को, जब वो भूख के लिए तड़प रही है, भूख भी एक आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 दिन से वो भूखी है, वो बार बार रिकनसाइल करने की कोशिश करती। दैट इज व्हाई आई लव चाहत ओवर देयर, कि चाहत ने अपने लिए स्टैंड बहुत अच्छा लिया। बट कीर्ति, जो मेरा दुख है आज के वीकेंड के बाहर का, आई अप्रिशिएट सलमान केम विद इन, यू नो, इवन इफ यू रिमेंबर, मैंने कल ये बात की थी, ये ड्रैग इसलिए कर रहे हैं ताकि सलमान की अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाए, शायद ये रीजन हो सकती है कि बाकी दिनों में क्या दिखाएंगे। जब इनको पता है इट्स नॉट ऑन सलमान, इट्स ऑन मेकर्स राइट नाउ, कि इस हफ्ते में इतना भरपूर कंटेंट था, इतने वर्सेस 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 थे। आई डोंट नीड अ लाफ्टर शेफ एनी मोर। हम पिछले हफ्ते ही भुगत चुके हैं, पिछले हफ्ते को केस नहीं था। और अगर जो मैंने निया कर शर्मा का जब देखा था कि ये मर्ज करेंगे, मर्ज का मतलब क्या था कि एक वीकेंड का बाद लाफ्टर शेफ आना ही आना था, और वो किसी भी क्या नाम है असैसिनेशन से पहले की डिस्कशन हुई हुई है। तो अगर ये करना था तो फिर पहले वीकेंड का वार जो मेन होता है, जो कि आज का दिन था, उसको क्रिस्प रखो। व्हाई डू यू हैव टू वेस्ट सो मच एनर्जी ओवर देयर ऑन आरफीन टॉपिक। पिन पॉइंट करो कि ये तुम गलत हो, ये तुम्हारी हिपोक्रेसी है, तुम खुद अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, जब तुम खुद लोगों को ये बोलते हो, वो मुद्दे रखो। आपने बात ठीक रखी कि तुम टाइम लॉर्ड बने, तो एज ए टाइम लॉर्ड तो उसकी मुझे गलतियां बताओ। यही लगता है ओडी, यू नो, आई थिंक हमने पहले भी देखा है। I don't know exactly, I could be wrong, but for some reason I feel कि पहले भी हुआ है जहां सलमान के time commitments and फलाना ढिमकाना रहा है, he has shot, लेकिन then someone else has come and taken over. I think maybe Farah या somebody वो as a substitute host आई हुई है. So I don't understand. Maybe सलमान उन सबको दिखाना चाह रहे थे कि मैं यहाँ हूँ,
आई He एम नॉट wanted to make a अफ्रेड, statement. मैं ये Yes, करूंगा, तो शायद that's इसीलिए fine. था। लेकिन अगर आपने वो करना है, दैट्स फाइन। अगर आपको भारतीय ये इन सब को वापस लेके आना है, दैट्स फाइन। लेकिन फिर यूज इट टू मेक देम डू अदर टास्क, जो ये स्टूपिड से टास्क करते हैं, गुब्बारा फोड़ो, ये फोड़ो, वो फोड़ो, वो करा के घर के मुद्दे सॉल्व कर लो, इंस्टेड ऑफ चूल्हा किसको चलाना आता है, जलेबी किसको बनानी आती है। Even गाइस, okay, so you TT. guys know, जो हमारा चैनल देखते हैं, me and Tino are like the number one fans of Laughter Chef. We love it to death, okay? लेकिन Laughter Chef का सीजन हो गया है, जब आएगा तब आएगा, अब नहीं चाहिए। और ठीक है, यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस के घर में वो भी कर सकते हैं, वो जो फेक नहीं करते, और नहीं वो नहीं करते, ये गोलगप्पा, इसमें करेला वाला जूस किसका है, क्यों Task, है, task, इसमें वो task होगा, देते हैं. नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो, ऐसा कुछ करा दो, वो भी फूड रिलेटेड ही है। अगर आपको मास्टर शेफ खेलना ही है, वो भी फूड रिलेटेड है, आपके वो इश्यूज टैकल हो जाएंगे। सो आई फील लाइक अगर आपको रिलीफ चाहिए फॉर सलमान, व्हिच इज फाइन, अंडरस्टैंडेबल, then you do these other tasks। and मैं ये नहीं कह रही कि कल नहीं होंगे, because we don't know, लेकिन हमें ये भी पता है कि we know कि एक जलेबी का सेगमेंट आ रहा है। that being said, मैं अग्री करती हूँ, ये मैं ही कह रही थी कि इतने दिन सेम बकवास क्यों दिखाई जा रहे हैं। they were like 2 days behind। I'm sure इन 2 दिनों में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक सेकेंड, Tino, is there a poll up? You're on mute. Almost. Okay. Yeah, so I'm Oh, putting in who are अच्छा, you supporting in Big Boss 18? Karan, अभी Vivian, पोल आ रहा है, अभी आ रहा है। Tino has hand up Karan, again। Vivian, Avinash, or someone else? करण, विवियन, अविनाश और रजत, ये 4 नाम दिए थे आकृति ने। ओके, तो keep या, it, can, तो आई अग्री विद दैट। एंड यहाँ पे आई डू फील इन्होंने 2 आई गेस इश्यूज आज टैकल किए हैं, 2-3 सम एक्चुअली। शिल्पा एंड ये अविनाश एंड रजत एंड इवन करण जो बोला था, वो एक ही मेन इशू था जिसके ऊपर बात हुई है। ओके, एंड देन ऑब्वियसली अरफीन एंड ये सारा का। लेकिन गाइस, दिस इज ऑल्सो व्हाई आज का एपिसोड सिर्फ 1.5 घंटा था या जो भी था। इट वाजंट द फुल 2 hours and 2.5 hours जो ये कभी कभार करते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो, ये जो टाइमिंग का आप देख रहे हो कि आज हम अर्ली आए हैं बिकॉज वो शूट हो गया था। लेकिन ओडी, नॉट जस्ट टुडे, ये हमारी कंसिस्टेंट कंप्लेंट रही है फ्रॉम द मेकर्स। हम सलमान को कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर, ही डजंट कंट्रोल हाउ द that's वीकेंड का what I वार said. इज It's not. कंडक्टेड। That's what I लेकिन was saying. Na, मैंने, कि, ओडी ने, हम सब ने यहाँ पे कितनी बार बिग बॉस वालों को कहा है कि ये लोग आपको कंटेंट देते हैं, आप लोग वीकेंड का वार इसीलिए रखते हैं ताकि वो जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हाटएवर जो भी होता है उसके ऊपर बात की जाए। अगर ऐसा नहीं है तो वीकेंड का वार रखा ही क्यों है? दिस इज व्हाई दे हैव वीकेंड का वार। जब ओजी बिग बॉस था, वो तो कट खड़ा भी खड़ा कर देते थे जब कोई एलिमिनेट होता था, एंड आमने सामने फिर बात भी होती थी, एलिगेशंस यूज्ड टू फ्लाई, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। चलो आपने छोड़ दिया, लेकिन एटलीस्ट जो होता है, handle it, address it. At the same time, do not influence them. I'm very glad, like I said, आज के मामले में उन्होंने ना अविनाश को इन्फ्लुएंस किया है, ना करण को किया है। I guess शिल्पा को अगर खाने का वो बताना, if that's influencing, I guess you can call that influence. I don't think that was influencing. And then ना ही no, that उन्होंने was not रजत को influencing. इन्फ्लुएंस किया है। So I'm very नहीं. glad उस मामले में जिस तरह से उन्होंने टैकल किया है वो मुझे अच्छा लगा है। लेकिन वहां जब रजत कह रहा था कि ये जब चुम के साथ हुआ था, तो नहीं, अरफीन ने कहा चुम was scared, चुम was this, तो वहां पे सलमान should have brought चुम into the picture. Okay, चुम, Exactly. एलिगेशन रजत ने लगाया है, ठीक है, he was vocal about it, यहाँ अरफीन अपना बता रहा है, लेकिन you are the girl that was being charged at, okay, how do you feel? तो जैसे उसने एपिसोड में कहा था कि उस मोमेंट में I was shocked or scared, I didn't know what could happen, लेकिन उसने ये भी कहा था वो मुझ पे हाथ उठा सकता था, मैं हाथ उठा सकती थी, उसने ये भी कहा था, राइट? तो ये बात सलमान उससे करा देते,
सबके सामने कि ये दिस इज व्हाट शी थिंक्स एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट. यू डोंट नो इन द हीट ऑफ द मोमेंट क्या होने वाला है, लेकिन ये भी एक्नॉलेज करती है कि हीट ऑफ द मोमेंट पे ये भी कुछ कर सकती थी, राइट? सो दे कुड हैव गिवन हर द प्लेटफॉर्म देयर. वो बोलने की कोशिश भी कर रही थी while she was sitting there, but they never took her in. ये आई थिंक पिछला जो बिग बॉस का सीजन गया है वहां पे भी हमने कहा था कि इफ ये जो तिगड़ी गई थी मर्दों की त्रिमूर्ति, remember in the big boss confession room to decide Arman's punishment, remember that happened? तो यहाँ पे चुम के लिए बोला जा रहा था ना कि threatening है, like you know he might make girls feel threatened or whatever. Then let Chum address it. Let Chum talk to Avinash, और Avinash और Chum का अपना सामना करा देते वहां पे. तो I just think कि they could have handled that section a little better. Chum का involvement मुझे लगता है वहां जरूरी था. Because Isha wasn't the one that was feeling threatened, na Alice, na Sara, na Shilpa, na जो भी और औरतें हैं वहां पे, it was Chum. यहाँ पे Chum को क्यों नहीं बोलने दिया? Why are those people silenced who are an integral part of the whole conversation? अगर Chum के साथ वो ना हुआ होता तो उसका eviction ना होता. तो I am just really confused about that, guys. मैं अपनी confusion यहाँ दूर करती हूँ, लेकिन पहले Odie, I'm gonna go to Tino, then you can go. Guys, please like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा. Oh, you want him to go? Okay, like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा, and Odie, go. Tino is working on something. Yeah, go. My only thing was that time में यही बोलता कि जब आपकी टाइम स्लॉट लिमिटेड है, योर टाइम इज मनी. मैंने इसलिए बोलता इट्स नॉट ऑन सलमान, इट्स ऑन मेकर्स. सलमान कभी मुद्दे डिसाइड करके नहीं आते, मेकर्स ने रखे होते हैं. जब इस हफ्ते आपने प्रोमो बार बार ऐसे काटे हैं, इतनी हीट चल रही थी घर के अंदर, द फुल हाउस वाज ऑन फायर. चाहत को जैसे टारगेट किया गया, चाहत का मुद्दा ये एड्रेस नहीं हुआ. देखो ये कभी भी नहीं है कि हम सलमान को उस तरह से कॉल आउट कर सकते हैं कि उसने इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया, ये हम बोलते रहे. जो इस दफा नजर आ रहा है कि सलमान एक बैलेंस लेके चल रहे हैं. लेकिन जब आपका टाइम इज योर मनी और आपने एक स्टेटमेंट भी देनी है, मेरे लिए लाफ्टर जब बैलेंस जब होगा, जब इतना कुछ घर में नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी चल रही होती है और फिर इतना हैवी वीकेंड का बार होता है, तब एक ब्रीजर चाहिए, देन आई एम फाइन. लेकिन वही शक्लें जो आप कॉन्स्टेंटली पिछले 6 महीनों से देख रहे हो, वो आपको दोबारा नहीं देखनी होती है. बिकॉज वो जो एक रह जाती है ना कि मेन हाउस के जो मुद्दे हैं वो अगर आपने एड्रेस नहीं किए, वीकेंड का वार का मतलब क्या है? एक वार होने वाला है. आई लव द वे कि जब आप ये बात करते हो कि एक लड़के को ये बोलना कि ये लड़कियां उससे अनसेफ हैं, प्रोवाइडेड चाहत मुस्कान दे मेड एन एलिबाई कि नहीं, हमें कोई ऐसी वाइब नहीं. सहेलियों को छोड़ दो, जो उसकी दो दोस्तें हैं, उन दोनों को छोड़ने के बाद भी जब बाकी लड़कियां ये स्टेटमेंट दे रही हैं, जब बाकी लड़कियां ये एलिबाई दे रही हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सलमान का मुद्दा ठीक था. लेकिन फिर आपको क्रिस्प मुद्दे रखने थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड थे. टाइम क्रिस्प है तो मुद्दे क्रिस्प रखो. एक चीज को लेके वो जो आरफीन नामा चला, मेरा दिक्कत ही वहां था कि वो जो अननेसेसरी चीजें हो रही वो ना की जाती. शिल्पा वाले मुद्दे को ब्रिलियंटली शिल्पा को पिछले हफ्ते भी और अविनाश का ये मुद्दा इस का उठा था, तब भी शिल्पा को यही रियलाइज कराया गया था और अविनाश को रोका नहीं गया कि यू नीड टू गो द ट्रैक यू आर गोइंग इन, जो तुम ओपिनियन को लेके बात करते हो. और शिल्पा को भी यही बोला गया, जब शिल्पा ने बहुत वैलिड पॉइंट आया कि सलमान आपको लगता है जो घर में लड़ता है, जो घर में मुद्दे इस तरह की क्रिएट करेगा, उसी को दिखना है. तो उसने कहा शिल्पा यू साइंड अप फॉर इट, आपको अपनी पर्सनैलिटी सामने रखनी है. आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके मुताबिक, जब आप कहते हो कि मेरा मुद्दा होगा तो बोलूंगी, ये शो ही अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का है. जब आरफीन से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जो सलमान बेसिकली बोलना चाहते लेकिन खींच गए, कि आप अगर एक माइंड कोच हैं, आपको उसमें फख्र भी है, प्रैक्टिस करते हैं. हमने आपको किसी को रोशनी दिखाते देखा नहीं. इस घर में चाहत के साथ जो हो रहा था, शी नीडेड अ लाइट, आपने उसका भी मजाक का हिस्सा बनते हो, ठीक है. सेम वे दूसरों के साथ जब हो रहा था, तो वहां पे आरफीन और जो सारा है उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसको आपने नहीं दर्शाना, लंबा खींच दिया. विवियन को लेके बिग बॉस ने टारगेट किया, तो विवियन कुड हैव बीन क्वेश्चन व्हाई द एफ यू वर डूइंग एज ए चौकीदार ऑफ टॉयलेट, कि तुम लड़की को वॉशरूम जाने से रोक रहे थे. उससे एटलीस्ट क्लैरिटी लेते. इतने प्यारे मुद्दे थे. जब वो मुद्दे एड्रेस ना हो और बेकार की खींचातानी हो, और अगर मुझे भारती को देखना हो तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट, तो मुझे लगता है शायद कल का एपिसोड भी देखने का मुझे फायदा नहीं है. घर वाले जब इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हम क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या नाम है, आपने, मैं नहीं कहता सारे मुद्दे एड्रेस करें, लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए और उसको जब खींच दिया, चुम की बात की जा रही है,
चुम वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। और ऐसा नहीं है कि जब ये एक स्टेटमेंट आती है ना, क्योंकि एलिस ने इसी घर में दी है कि चुम अगर स्केयर थी तो जैसे वो हाथ पांव चलाती है, और जो उसने अगले दिन चाहत के साथ किया, जिस तरह से वो वायलेंट हुई, शी कुड हैव बीन कॉल्ड आउट, बट द वे थिंग्स वर गोइंग इट बिकेम बोरिंग फॉर मी, दैट्स ऑल। मैं ये 100% अग्री करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे यू नो ऐसे सीजन्स भी हमने झेले हैं एज रिव्यूअर्स जहां पे कंटेस्टेंट्स कुछ नहीं करते। बिग बॉस ट्राइज एंड कंटेस्टेंट्स डोंट डू एनीथिंग। यहाँ पे ऑपोजिट है। यहाँ पे टास्क्स एज सच कुछ नहीं हुआ है, एज सच। लेकिन यहाँ पे कंटेंट ये दे रहे हैं थ्रू देयर इंटरेक्शंस, इनका थॉट प्रोसेस जो भी है। तो इतने नेचुरल मुद्दे आ रहे हैं, जेन्युइन मुद्दे आ रहे हैं इन लोगों की, नेचुरल दोस्ती एंड दुश्मनी हो रही है इन लोगों की। देन यू कैन एड्रेस दिस स्टफ। आपका ना खर्चा हो रहा है ये जो लगाते हैं टास्क के लिए, ये ताम झाम जो होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट योर एपिसोड्स। आप ही एडिट करते हो, आपको पता है कि किस दिन क्या क्या हो रहा है। दे कैन easily do that. Now I don't know, obviously संडे के दिन कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कल क्या क्या ड्रेस होता है, क्या क्या नहीं होता है। पर या इवन आपने जो 10 15 20 मिनट वेस्ट करने हैं जलेबियों में, यू डिडंट हैव टू डू दैट। आई थिंक यू कुड हैव यूज्ड दैट टाइम वाइजली, बिकॉज अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? क्योंकि फिर एक डिसजॉइंटेड वो लगता है। एंड यहाँ पे लाइक आई सेड, लाफ्टर शेफ कौन सा अगले हफ्ते शुरू हो रहा है जो आपको 2 हफ्ते लगातार खींचना पड़ रहा है लाफ्टर शेफ को, इवन दो इट वाज अ money making, I guess, cash cow for them, I understand that. लेकिन अगर आप लाफ्टर शेफ का जिक्र भी ना करोगे ना, हमें तब भी कृष्णा अभिषेक याद रहना है, सुदेश लहरी जी याद रहने हैं, एंड भारती भी याद रहनी है, हमको विक्की और अंकिता भी याद रहने हैं। So you don't need to worry about it, okay? Maybe Vicky and Ankita could have came on their own and been like, look, हमने बिग बॉस का झेला है, हम भी हस्बैंड वाइफ टीम थे, यहाँ पे अरफीन एंड सारा है, okay, let's do this, let's see, हमने झेला कि आप झेल रहे हो, whatever it is, they could have made things more interesting, मुझे लगता है। H the Bizza, I'm coming to you, लेकिन उससे पहले guys जो हमें देख रहे हैं, please like करना, सब्सक्राइब करना। H the Bizza, go. Yeah, guys, I think this is the मैं भी ये check कर रहा था. I think this is the highest amount of people we've had अभी इस season में Big Boss पे. So thank you guys जो देख रहे हो यार, please thank you for your love, for watching. poll पे जाओ, अपना please vote करो. I think I will give because यहाँ पे हमें And पता ही thank लगता ना you, poll Tino, का. for showing up, darling. Tino, what are the results so far? अभी तक हाँ मैं बताता हूँ, अभी तक 200 वोट्स आ चुकी हैं, एंड विवियन इज लीडिंग राइट नाउ. विवियन एंड देन करण. विवियन 34%, करण 28%, अविनाश इज 26%, और रजत इज 13%. सो आई मीन या दैट्स गुड. देखो आई मीन यार मेरे को ना ये And अच्छे thank लगते you, हैं. Tino, for showing up, because जो व्यूज है ना वो आपके आने से भी रौनक लगाते हैं, बिकॉज एक्चुअली मैं फिर बोल रहा हूँ, कोच कोच होता है, ताकि लोग ये ना क्या पता नहीं शेमिंग होगी है, कोच कोच होता है डार्लिंग, यू द नहीं, कोच डार्लिंग। ओडी टीनो showed up, तो आई थिंक विनया थी या कोई था कमेंटर, और फर्स्ट कमेंट वाज एज टू द बिजा फैंस असेंबल। तो वही है ना, एज टू बिजा कभी कभार आते हैं, और धमाकेदार कमेंट भी तो आए, धमाकेदार कमेंट भी तो आया। हाँ, धमाकेदार कमेंट भी आ गया। नहीं ऑडियो में अपनी जान सुखा देते हैं यहाँ पे। ओके, मैं साइनस आप इन्फेक्शन लोग कर रहे हो यार मेहनत ज्यादा. मेरा देखो गला मैं बैठ गया है, कल मैंने करवा चौथ का व्रत रखना है, आई तब नो भी मुझे यहाँ टपकना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो कोई नहीं कहता कि कीर्ति खुद के लिए धमाकेदार कमेंट क्योंकि बोल। यही वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी अगर दाल कल बराबर का करता है. एपिसोड बोरिंग हुआ, कीर्ति, वी गोना डू करवा चौथ आरती ऑफ टीनू टुगेदर लाइव, बिकॉज अगर उन्होंने कल पका दिया, ये पता क्या बात है, ये मैरिज जो है बोरिंग ना, होना. खतरों में बिग बॉस डालो, बिग बॉस में लाफ्टर शेफ डालो, ये कभी मुझे जेल नहीं हो पा रहा, मजा नहीं आ रहा। तो तीनों कल हम आरती उतारेंगे आपकी। गाइस प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई गोना गो नाउ। हस्बैंड एंड वाइफ, आपकी जो तीसरी बीवी है, तीसरी बीवी, आई मीन दूसरी तीसरी बीवी का, चलो गाइस, ओके, गाना गो नाउ, बाय बाय। Bye, Odie, see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Oh, नहीं so और Tino, देखो carry on. नहीं बात ये होती है ना Wait, कि so let me ask you, यहाँ पे हाँ you talked about the poll, okay, you talked about this, लेकिन हाँ अगर मुझे पूछना पड़े from these 4 guys, Avinash, Rajat, Karan, Vivian,
who are you liking? Who is your favorite right now? What will you say? नहीं देखो, आई डोंट नो इफ आई हैव अ फेवरेट। अगर इन चारों में मेरे को अभी क्लिक करना पड़े ना, एंड आई एक्चुअली डिड क्लिक एज वेल ऑन द पोल, आई वुड से हाँ ओ Audience Kirti are है Chahat and H2 is Vivian Hamara Ladla. ले- Helga, go to hell. नहीं या आई वुड से राइट नाउ बिटवीन करण एंड विवियन, आई देखो आई कैन सी, और ये मैं बायस लेके नहीं आ रहा खतरों खिलाड़ी की और एनीथिंग लाइक दैट, आई एम जस्ट प्योर बेसिक मेरे को आई मीन जो एक तो ये दिख रहे हैं, दे आर डूइंग थिंग्स इन द हाउस, आई डोंट नो, मेरे को ये हुआ है विवियन से भी कई बार अनोइंग हुई चीजें हुई हैं, आई गेट इरिटेटेड समटाइम्स कि जैसे वो कर रहा है डील, समटाइम्स सेम थिंग विद करण, बट राइट नाउ इफ आई हैव टू पिक, आई डू लाइक देम। ओह थैंक यू, आई लाइक देम बेटर देन जो मेरे को यार, मेरे को जैसे अविनाश टाइप के होते हैं ना लोग, मेरे को वैसे नहीं पसंद है। Yeah, मेरा भी अभिषेक वही है, कुमार मुझे ऐसे ही नहीं था वो, पसंद, आई डोंट लाइक दीस टाइप ऑफ गाइस। ओके, लोगों को बड़े पसंद है ये ऐसे टाइप के, क्या बोलते हैं, कॉपी कैट्स कह लो, जो भी कुछ कह लो, मतलब अपने आप को क्या आसिम वानबी या ये, दीज आर ऑल लाइक चा चा पै पै करने वाले, आई डोंट लाइक देम एट ऑल। तो मेरे को कोई एंटरटेनमेंट इनसे मिलती नहीं है, एंड आई डोंट रियली केयर पर्सनली। हाँ, मेरे लिए भी नंबर 1 करण है। आई लाइक हिम, मुझे उसका सार्काज्म पसंद है, मुझे उसका थॉट प्रोसेस भी पसंद है। जब बोलना है तो वो झुकता नहीं है, जब जोक करना है तो वो हटता नहीं है। वाह, ये क्या डायलॉग था ना मेरा, वाह, आई वाह लव दैट। ओके, वाह, ये करण तो वीर हाँ, ये तो मेरा गौर करना फैन, पड़ेगा। ये क्लिप डाल देना। करण वीर पेज है ना कोई, तो ये डाल देना। ओके, दैट वाज अ नाइस वन। बैकग्राउंड म्यूजिक आगे तो होता है ढंग ढंग I ढंग ढंग happen करके। to like him, मुझे वो अच्छा लगता है। हाँ विवियन भी मुझे अकड़ू लेकिन ठीक ठाक लगता है। I think he has a swagger इट्स ओके about him, वो थोड़ा या अलग सा दिखता है इस शो में। लेकिन मुझे उसकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम लगती है, ये जो चाहत के साथ फालतू का वो हो रहा है। I think वो हट जाए, he's cool। और हो कल जाएगा यार, अभी तो अब अभी 2 कल हफ्ते हुए हैं अब अभी, लड़ मर राइट, रहे बहुत हैं, टाइम वो है। पार्टी के लिए पूछ रहा है। I thought that was really fun। I mean, उसका देखो राइट नाउ sharing गाइस time में से भी ना, तो जाता है। विवियन और करण आर द पीपल टू बीट राइट नाउ। Yeah, ये yeah, रजत को भी Harmony, पता है, ये Harmony, अविनाश को, ये Karan and सबको पता है Vivian, वहां पे exactly, कि भी exactly। इन दोनों क्यों तो लड़ाई झगड़े इनसे होने ही हैं, और हमने कल ही देख लेना है जो वो में दिखाया था, राइट। तो आई थिंक दैट वुड बी नॉर्मल। मगर देखो मैं वही कहूंगा कि थी, ये मतलब कोई सबकी नेगेटिव चीजें होती हैं, नो सबकी नेगेटिव चीजें होती हैं, राइट, दैट्स नॉर्मल। अभी Yeah, लोग नेगेटिव भी बोलेंगे यहाँ पे, गलत चीजें भी exactly। बोलेंगे, देयर हैजंट बीन अ सिंगल पर्सन की भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से देखो, अगर आप शांत तरीके से, जैसे एक अंकित था, राइट, हु वाज वो रुबीना's husband too, right, Abhinav। there's some people like that, they don't go I further love than, Abhinav। हाँ You वही ना, guys, वो I कोई have my own personal Abhinav, which is here। नहीं, Okay, मगर लेकिन हाँ, हाँ, like I just don't like Avinash type नो personality। नो, इट्स मैंने इट तो लुक्स उसको लाइक, प्रतीक से कंपेयर किया है। हाँ प्रतीक मेरे लिए मच्छर था, ये भी मच्छर ही है, लाइक बंदर मच्छर टाइप थोड़ा सा है। आई डोंट लाइक। मैं गौतम का मुझे पता नहीं, मैं पर्सनली ऑफेंडेड होती हूँ जब कोई अविनाश को गौतम से कंपेयर करता है। लाइक नो प्लीज नो नो गाइस, नो नो प्लीज। ओके, नो, देखो, और ये नहीं कि मैं गौतम का बहुत बड़ा फैन हूँ, व्हाटएवर, आई एक्चुअली हाँ लाइक्ड हिम लेकिन इन, मैं ही हूँ। नहीं आप हो, but I liked him actually in रोडीज, राइट, जब रोडीज में था गौतम का और उसका, that was fun। मगर गौतम का ये बात थी, I know it too, he was actually very smart, और like he was the brain guy। तेनू पै जानिया, तेनू ओ, पै जानिया। ओके, ये भी तो ये ओडी ओडी ये मेरे को लग रहा है माइंड कोच है, वो कर करके मतलब ये हाँ, वो कर रहा हाय हाय हाय, ओडी जिद्दां दा माइंड कोच जे किसी ਨੂੰ मिल जाए ना ता ओए है। नहीं नो। देखो, और ओके, ये तो अब चल, इन और चारों में से हाँ, यू लाइक करण करण अविनाश, है तो और यहाँ पे किसने लड़ते हुए पूछा थे। रजत का क्या है, तो नहीं, तो रजत का, रजत का बोलो। या देखो रजत का अगेन बाहर की जो बात हुई है, आई एक्चुअली डोंट नो, राइट, मेरे या को नहीं पता है, मैंने नहीं एग्जैक्टली, देखा। आई हैव नो तो जो आइडिया। अंदर की बात करो ना, तो आई डोंट नो, आई मीन आई फील लाइक कि वो ना एक टाइम बॉम्ब की तरह है वो, ही इज वेटिंग, या जो वो नहीं होता बारूद का गोला ऐसे टाइप का, बारूद का गोला होता है ना जिसका पिन होता है, ऐसे या पिन निकाल दिया किसने, he's a और उसके ऊपर उंगली रखी हुई है, वो या उंगली जब तक रखी हुई है ना तब तक ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उंगली हटनी है ही है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लाइफ पे जो भी कुछ होना है वो होना ही है। और इसकी जो प्रोटीन बुद्धि है ना, ये बाहर निकल के आनी है, एंड ही इज गोना डू समथिंग वियर्ड। तो हाँ, ये so you know, like it's not like
I like him, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये गेम में जो कर रहा है, I have no issue with that, you know, और कोई रोब झाड़ता है तो ये भी झाड़ता है, या ये फालतू में रोब झाड़ता है तो टैकल कर लेता है, you know, he's been मुझे able to लगता control like I himself थोड़ा said, सा. कुछ लोग हैं जिनको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, ओके, तो आई थिंक कि रजत स्टैंड आउट कर रहा है, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, स्टूपिड लगे, स्मार्ट लगे, you know, that's different. ये टॉप फाइटर I जाएगा feel रजत. like I feel like Rajat is still integral for this show हाँ, compared to so many other people. You know, so many other people. ये चारों ही कर लो यार. देखो चारों ही हाँ, चारों है. Even though चारों I don't like. हाँ, हाँ, ये हाँ, चारों के चारों चारों मतलब होगा ही, मतलब टॉप 6 जो भी कुछ कह लो, ये इन्होंने ओके, मतलब इनमें से. तो अब लड़कों से शिफ्ट करते हैं एंड लड़कियों के ऊपर आते हैं. I think I already know this. Your favorite is Shilpa. हाँ, नहीं शिल्पा, और मैं ओडी पे ये कमेंट कर नहीं पाया, एंड दैट्स ओके. आई मीन ये अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट की बात नहीं थी. दैट्स गुड कि भाई अगर इफ शी इज ट्रूली दैट टाइप ऑफ पर्सन, यू नो, दैट्स वेरी नाइस. मैं तो ये कहता कि अगर एब्सोल्युटली नेगेटिव मैं सोच रहा था कि ओके अगर वर्स्ट के सिचुएशन है कि भाई वो ये अपना ड्रामा कर रही है, दिमाग से खेल रही है, स्ट्रेटजी करके कर रही है, ईदर वे शी इज शाइनिंग, राइट? या Yeah. तो दिल से वो ऐसी अच्छी है, और व्हाटएवर इट इज शी फील्स लाइक दैट, दैट्स इवन बेटर. या वो स्ट्रेटजाइज करके कर रही है, दैट्स नॉट बैड ईदर, राइट? Yeah. बोथ आर गुड थिंग्स इन द एंड. तो या आई थिंक शी इज डूइंग गुड, एंड चाहत इज डूइंग गुड. आई एम little bit not disappointed. I think सुनने को आया कि हेमा कल गई है, right? Oh my God! एक सेकेंड. हाँ, ये जब पूरी डिस्कशन चल रही थी, वहाँ क्या हेमा बैठी थी? तब बैठी हुई थी? मैं मैंने तो तो जब नोटिस किसी ही नहीं ने किया है उसको. Was she sitting there? नहीं, मैंने भी नोटिस नहीं किया, और यही बात होती है कीर्ति कि जब यहाँ पे किसी ने Yeah. लिखा ना कि हेमा इविक्ट हुई है, मैं कहा ये हेमा कौन है? मैंने कहा हाँ. फिर मेरे को याद आया हेमा भी है यहाँ पे शो के अंदर. तो ऐसे ही होता है, और ये देखो बिग बॉस वालों की ना ये टेक्निक है. लोग कह रहे हैं कि देखो, ओडी कह रहा है ब्लैक साड़ी में बैठी थी. What? ओह मैन, हाँ? ओडी ओडी I haven't noticed ऑब्जर्वेंट है her अभी. at all. Oh my goodness. मुझे देखो वो लगा कैमरा गया ही नहीं यार उसके ऊपर. मुझे कैमरा लगा गया था आज. कि उसका eviction पहले हो गया और बाद में ये डिस्कशन चालू किया उन्होंने. Oh my ये भी God, I didn't pay attention to her at all. नहीं, तो वो अगर आप देखा, अरे देखो अगर ऑब्वियसली शिल्पा इज शाइनिंग, चाहत इज शाइनिंग, क्योंकि देखो और कोई क्या कर रहा है, राइट? Yeah. आई थिंक आपने सही कहा था चुम के बारे में, राइट? देयर वाज, आई मीन लुक, देखो ये मेकर्स होते हैं ना, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है. नेक्स्ट वीकेंड में चुम ने निकलना है. आई मीन वी नो इट. No, यहाँ पे पूरा हफ्ता चुम ने कुछ नहीं किया, ओके, लेकिन इस मामले में, एक चाहत के मामले में, वो जो खाने को लेके था, खाना का मामला उठा था, एक अविनाश के साथ जो हुआ है, एंड देन लीडिंग टू हिज eviction, इन दोनों चीजों में चुम वाज अ मेजर फैक्टर. तो यहाँ पे आपने चुम को ना बोलने दिया, इग्नोर किया है. सो दिस गर्ल जिसके पास ऑलरेडी कम स्क्रीन टाइम है, जहां मिलना चाहिए तब भी आप नहीं दे रहे. इट्स टू So that लेट. would show people that she is not integral to this show. I mean, I'm एग्जैक्टली, sorry, but that's the truth. अगर वो एग्जैक्टली कीर्ति. important होती तो क्या उसका यहाँ पे बोलना लाइक जायज नहीं था? उसने कोशिश भी की थी. वो She नहीं बोलने tried. देंगे, बिकॉज उसका पत्ता कट चुका है. आई मीन शी इज नॉट इविक्टेड, मगर उन्होंने मेकर्स के दिमाग में वो इविक्ट हो चुकी है. तो वो, आई मीन अनलेस समथिंग क्रेजी हैपेंस दिस वीक, माय ओनली थिंग इज आई होप कि चोम ये देख रही है और शी हैज सम ब्रेन सेल्स टू थिंक कि मैन, मेरे को फुटेज नहीं मिली, आई हैव टू डू समथिंग क्रेजी, आई हैव टू डू समथिंग दिस वीक Yeah. इफ आई वांट टू स्टे. क्योंकि वहां पे मेकर्स ने उसको वार्निंग आज बड़ी क्लियर दे दी, आप हो नेक्स्ट वीकेंड eviction आपकी, unless something happens, right? So now it's up to Chom, but I agree कि देखो पूरे हफ्ते नहीं करोगे आप, एंड में जाके कुछ करोगे, that's too late. That's too late. Makers care about TRP, they care about screen time, they care about कि भाई जो एंटरटेनमेंट किससे मिल रहा है, कौन एंटरटेनिंग है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. आप तो यहाँ सोच पे के आप नहीं कर पाओगे. I will personally like to send, क्या कहते हैं, SOS to शहजादा. Okay. हाँ, शहजादा भी है, मैं भूल ही गया. लाइक इतना फास्ट क्या किसी को डिसअपियर होते हुए देखा है? ये बंदा आया, इतना वोकल था, ओके, वो वोकल बंदा चुप बंदा कितना हो गया? लाइक हाउ, what happened that caused him to go so quiet? Like I literally
cannot like imagine कि शहजादा चुप है वो जैसे यही वो होता है गेम की। प्रीमियर में था फर्स्ट एपिसोड में था आई वाज लाइक इस बंदे को झेलना पड़ेगा लेकिन या अब नहीं एंड द थिंग इज गेम के लिए खराब है ओके फुटेज वाइज खराब है लेकिन अब मुझे शहजादा बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि वो चुपचाप इनोसेंट टाइप लग रहा है यू नो व्हाट आई मीन और लाइक चुपचाप यहाँ इनोसेंट पे वाले आगे जाते नहीं है, वो तो नहीं हमें पता जाते ही है। ना नहीं हाँ, तो जाते यहाँ पे शहजादा देखो, और ये मैं हमेशा कहता हूँ एवरी सीजन यही ना कीर्ति, हम यही बात करते हैं कि देखो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है शो का वो है बहुत बड़ा, कईयों को ज्यादा होता है। आइसोलेशन कह लो, हम्म, फैमिली से दूर कह लो, नो आउटसाइड थिंग्स कह लो, जो भी कुछ कह लो, खाना कह लो, एनीथिंग, राइट। तो ये हम्म, मैटर करते हैं। कई कई लोगों को आई थिंक जो पहले फ्यू डेज होता है, मे बी पहला हफ्ता भी कह लो, वो सब प्री प्लान ही होता है। तो जैसे हम गेम में होता है ना, मैं अमेरिकन फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, मे बी आपको जो जो प्ले आप सेटअप करते हो ना, तो जो पहला प्ले होता है ना आपका, जो आप जाते हो फील्ड के ऊपर, वो मतलब आपका पहले प्री प्लान होता है, आपको पता है भी ये मैंने करना है गेम में, क्योंकि वो आपका कंट्रोल है। तो जब लोग भी आते हैं ना इस शो के अंदर, यही होता है कि वो पहले थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके, थोड़ी सी अपनी टैक्टिक करके आते हैं, डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द शो। तो उसके बाद फिर जो रियलिटी होती है ना, वो थोड़ी बाहर आती है। तो कईयों को फिर I don't know what happened to him. Maybe he is being impacted by the isolation. नो Maybe ये शहजादा जो है अब मुझे याद आया जिस दिन से मुस्कान ने कहा था ना कि मेरे शहजादा जी से बात हुई है करण आपसे बात हुई है आप दोनों ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं यू नो जब से उसने वो डायलॉग बोला ना शहजादे का पट्टा बैठ गया ओके लाइक उससे पहले शहजादा इतना वोकल था जब से मुस्कान के साथ दोस्ती हुई है मुस्कान तो अभी भी नहीं दिख रही शहजादे को भी ले डूबी अपने साथ और man. शहजादा अपने दोस्ती में इतना खो गया है वो चुप बैठी रहती है ये भी चुप बैठा रहता है लाइक व्हाट द Oh हेल man, ये होता है ना कि क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, अपना आपकी जो होती है द इन्फ्लुएंस ऑफ योर पीपल यू हैंग आउट विद। हिंदी में कुछ कहावत है उसकी बड़ी अच्छी, ईदर वे। तो यहाँ पर जो आज एक और बात, संगत संगत का संगत का असर असर ऐसे कुछ था। संगत का हाँ असर हाँ, या। और देखो यहाँ पे जो सलमान खान के बाद, आई गेट इट गाइस, लोग एंड आई एग्री टू कि भाई एक आपने मुद्दा पकड़ा, क्यों पकड़ा, आई लाइक, अगेन मैं कहूंगा कि जो मुद्दा पकड़ा ठीक है, लोग कह रहे या हैं आई लाइक प्रोफेशनल, इट ऐसे नो, some of these fake professions like that needs to be called out. I have no problem with that. Kudos to Salman for doing that. Amazing. I agree with Odi ki jo accent वाला होता है ना, I don't like those things anyways. मगर हाँ besides that, I मुझे भी like the target. हाँ, नहीं मगर besides that, I like that target that he did. मगर देखो ये भी बात है, Salman went through a lot. It is 100% या possible कि Salman कह रहे देखो मैं 1 घंटे के लिए आ सकता हूँ, and I'm not gonna go into controversial big things. मेरे को एक चीज आप दे दो, and I'll just talk about that and I'll leave, right? ये भी हो सकता है। Look, after नहीं going मुझे ये through, भी लगता है कि वो जब हाँ, सलमान ने ब्रेक ली थी ना उसके बाद उन्होंने कुछ और टॉपिक उठाना था लेकिन फिर सारा का शुरू हो गया वहां पे तो yeah, ब्रेक के बाद फिर उन्होंने सारा को एड्रेस किया आई थिंक yeah. दैट्स काइंड ऑफ व्हाट हैपेंड Maybe, yeah, but I हाँ think I don't think मैंने जब शो हुआ था ना शुरू, I told कीर्ति टू, मैंने कहा यार ये this week is a bad week to take पंगा with Saman, या because he is not in a good space, या right? but मगर वो दैट फिर भी बीइंग आ रहा है। सेड I ही mean, I was surprised कि how calm he was, कीर्ति। yeah he was या, calm he क्योंकि wasn't जैसा ये fighting बंदा ना आरफीन बार बार उसको कट ऑफ कर जाता, नो 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 मैन, ये वो मैं, yeah हमने देखा हुआ मैं है ये यही सलमान सोच खान रही को कि थी चुप चुप हो जा तू, मैं बोल रहा हूँ तू, राइट। एग्जैक्टली आई थॉट मैं मैन, आई वाज यही लाइक ये सोच क्यों रही ले थी रहा है, पंगुली कि कर जा रहा है ये अरशदीन बेवकूफ ने बंदा। कट करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है सलमान इज नॉट सेइंग या, एनीथिंग आई लाइक एम आई वाज जस्ट सो शॉक्ड। सरप्राइज्ड या, इतना वो मगर कट यही कर बात है रहा ना था कि आई थिंक ही वांट टू मे बी जस्ट टॉक अबाउट लाइक कपल गेट ऑफ थिंग्स लाइक एंड गो। चलो करो एंड मैं हाँ, निकलूं यहाँ से yeah, आई I think that's what it was. So I don't think he was really interested in कि भाई या oh इस बारे में मुद्दा हुआ है इसके। But I mean I think otherwise I do feel maybe I'm wrong. आप कमेंट में कहते हो कि नहीं H2 you're very wrong. I do feel कि सलमान को ब्रेक देनी चाहिए थी। I think this weekend maybe he didn't want to. I या get it. But I लाइक think यू ना, और सेड Karan Johar या कोई आता ना इस weekend पे just to kind of, because या I think I दैट्स feel नो like this is लाइक like a, करण या फरा आ सकते थे हाँ, दे वर आ अवेलेबल जाना चाहिए था। लेकिन मुझे और लगता maybe है अगर थोड़ी देर के लिए आता सम्मान, and then he would have said, Yeah, look guys, I have exactly. things going, I think Salman showed up because he wanted to show people that हाँ, I'm here, I'm not नहीं afraid, maybe जैसे I'm gonna नेक्स्ट do my एपिसोड में ना, thing. जैसे जो कल का था, instead of laughter chef ये वो करके जो भी कुछ हो रहा है, maybe bring somebody out, right, bring whoever Yeah, else,
because I think because I feel like I'd really ought I still do a lot of like TV things and stuff like that, right? Interviews, ये वो ऐसे कई बार होता है कि बंदा जाता है कि look, I have too many things going on. I want to just touch on this thing, right? It may not be something that what people want to hear. Maybe that's fine, right? It may not be something that you want to, maybe if you had more time, you want to think about it. मगर हो जाता है ऐसे. तो I 100% agree कि सलमान खान की टीम ने कहा होगा देखो वो आ रहे हैं, but he doesn't want to get into like we don't want his mental health to get more affected. कि भाई because Salman can get very connected to the show. देखा हुआ हमने कि कोई बात होती है, कोई उंगली करता है, he can get very pissed off, he can get very emotional about it. And I think he didn't want to do that. And or yeah, show channel whoever decided that, that's okay. So I have no issue at all कि एक तो ये जो फेक बंदा है इसको इन्होंने एक्सपोज किया, गुड किया. I have no issue कि और इतने चीजें हुई थी उसकी क्यों. It's okay, guys. बहुत वीकेंड के वार पड़े हुए हैं अभी. There's a lot of stuff that happened personally with Salman this week. It's okay. I have no issue with that कि अगर उन्होंने ब्रेक ली थोड़ी सी and focus on one thing. Yeah, I mean, और ये जो संडे का एपिसोड season होता है पड़ा ना, है, guys, like 10 more weeks or something. yeah, यहाँ पे comment आया है, need few wild cards. निया कहाँ पे है जो कहते मुझे निया आएगी वाइल्ड लगता है कार्ड पे. नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वाइल्ड कार्ड्स की ज़रूरत है. ये लोग खुद से ही बहुत कंटेंट दे रहे हैं. अगर लगा किसी हफ्ते कि अब डाउन जा रहा है, स्टेल जा रहा है, देन वाइल्ड कार्ड्स लेके आओ. लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी की भी ज़रूरत है, चाहे वो निया शर्मा क्यों ना हो. I think if they bring her, then it needs to be at a pivotal moment. अभी मुझे नहीं लगता कि वो moment आया है. It's way too early for wild cards, I feel like. And अगर आप वाइल्ड कार्ड्स लेके आओ, then make sure it's क्या कहते हैं, worth it उनका मगर अब and हम इसलिए सब लेके आएंगे वाइल्ड कार्ड, राइट? आई मीन देखो, जो चीजें चलाने वाले, लड़ाई करने वाले हैं वो भी हैं, जो चुप बैठे हुए वो भी हैं, जो अपनी ड्रामे कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कर रहे हैं, व्हाटएवर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर ऑलरेडी, राइट? तो वाइल्ड कार्ड जब लेके आते हैं भी जिस चीज की कमी हो कि भाई शो की टीआरपी कम जा रही है, बोरिंग हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, राइट? अभी क्या वाइल्ड कार्ड देने की जरूरत ही नहीं है. आई थिंक दीस पीपल आर डूइंग ग्रेट. जैसे कि ये कमेंट है कि बिना टास्क के ये इतना दे रहे हैं शो को, तो और क्या ही चाहिए, और ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब अर्चना का शो ले लो या कोई व्हाटएवर हैपेंड इन दैट, पीपल जस्ट छोटी छोटी चीज के मुद्दे लेके दे वुड स्ट्रेच द होल वीक, राइट? सो इट्स ऑन द कंटेस्टेंट. हमने ऐसे भी सीजन देखे हुए हैं जो लोग बोरिंग, लाइक क्या देख के मतलब क्या हो रहा है यार, ये क्या देख रहे हैं हम, लाइक इट इज सो बोरिंग. बट दिस सीजन इज गुड. बेस्ट पार्ट इज कि कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ओ भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीजन. इस सीजन आज तक हमने ना किसी की फॉलोइंग के ऊपर बात की है, ना किसी के फैंडम के ऊपर बात की है, ना बाहर सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है उसके ऊपर बात की है. इट्स सच अ फ्रेश, आई मीन क्या कहते हैं, breath of fresh air. I love that. Okay, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए और पहले का बिग बॉस ऐसा ही था. No one gave a damn कि किसके कितने मिलियंस हैं, कितने मिलियन गेन किए हैं, कौन बाहर किसका दुश्मन है, कौन बाहर किसके साथ कोलैब कर रहा है. Like no one cares about any of that, or I don't care about any of that. And I'm so glad कि मुझे ये comments नहीं देखने पड़ रहे कहीं पे, ना हमारे comment section में जो आते हैं, ना यहाँ chat में जो आते हैं, like ना Twitter पे मैं कहीं देख रही हूँ. So I just love that because यहाँ पे वो OG flavor जो है Big Boss का वो नजर आ रहा है. And यहाँ पे कोई इसको unique भी कह रहा है because of that. Yeah, क्योंकि काफी season से ये नहीं हुआ है. काफी एंड season ओटीटी भी लगा लो ना इकट्ठे. अगर बिग बॉस के सीजन ओटीटी लगा लो तो मतलब 6-7 सीजन हो चुके हैं कंबाइंड, राइट? टिल भी. और मैं क्विकली कीर्ति यहाँ पे अपडेट देता हूँ पोल की. सो राइट नाउ इज अबाउट ऑलमोस्ट 500 वोट्स. तो विवियन इज लीडिंग राइट नाउ 35%, एंड करण एंड अविनाश आर बेसिकली टाइड. आई एम लाइक शॉक्ड. Rajat is at 13%. पूरा हफ्ता जो हुआ है. Yeah. Okay, guys, now I'm kind of losing my voice and कल मेरा व्रत है, so I don't want to get more sick than I already am. Okay, कल मैं देखती हूँ अगर मैं आऊंगी, नहीं तो टीनो संभाल लेना सब कुछ, because if my voice is already messed up. Okay, guys, so thank you so much for joining us. Please like करना, subscribe करना, and कल हमें फिर join करना, हम फिर आएंगे Weekend Ka Vaar का review लेके. Bye bye.